I, JC Vivek Shah, President of JCI Durg Bhilai, welcomes you all in this program of GST Manthan, organized in association with BNI Durg Bhilai in our JC Week Dhoop 2020 as a JC Week program. Members who have joined for the program and are not a JC member, I shall brief you explain what JC Week is. JC Week is usually celebrated from 9 to 15 September across the world, and during this week, we members of JCI try to reach out to the society for sharing our knowledge, helping the needy in the society, create awareness for well-being. Usually during the week, we reach out to the society physically, but due to COVID-19 this year, we have restricted ourselves to online platform. Today's program is the third program of our JC Week, wherein we are doing this business seminar on topic GST Manthan, to let our business community know the benefits of GST and how to avail it. To enlighten us on this topic, we have a very expert speaker on this topic, CA Ramandeep Singh Bhatia from Raipur. Welcome, Ramandeep sir. We have today with us a very renowned figure of Durg Bhilai with us in this session, that is CA Amit Rai ji, Chairman of CA Association, Bhilai. Welcome Amit Rai sir to the session. We shall be waiting to hear you today's session. We also have today with us Shri Bhupendra Nema ji, President of BNI Durg Bhilai Durg, as our co-host. Welcome Shri Bhupen ji. It is going to be a real interactive session. After the session, all the participants shall ask their doubts to the speaker, and I hope they will that will help businesses. Now I would like to call BNI Durg Bhilai President Shri Bhupendra Nema ji for their address. Bhupendra Nema ji. So, very good morning, very happy morning to all JCI members and all the participants who have joined this session today. I'm very delighted that JCI has started such a nice and has taken such a great initiative in educating every part of the society, all the entrepreneurs, that how can they get benefited from GST. I mean, how to make profits. We all do pay a lot of GST in our businesses, but it's really exciting. The topic actually is very exciting, and I'm really excited to hear about you. Now, I'm actually thankful to the president of JCI, Mr. Vivek Shah, thankful to Mahavir Jain, he's a great friend, and I'm thankful to Mr. Nitin Agrawal, the speakers, Mr. Ramandeep and Mr. Amit. So for organizing and doing this session, it's lovely to be a part of this session, lovely to be here and understand how things are going to work in all of us are business entrepreneurs, and all of us need this kind of knowledge. And you guys being driving this and educating us is going to help us a lot. Sorry, I am in car. I have been connecting a lot of meetings. So sorry for that, but I'm very, very excited and to be a part of this. Thank you so much for inviting Mahavir, and I wish you all the very best, and I wish to listen to the whole session very enthusiastically. So I'm waiting for that. Thank you so much. All the best. Thank you sir for your kind words. Just a little mention. आज हमारे बीच हमारे पास प्रेसिडेंट जेसी विकास बाफना जी उपस्थित हैं, हम उनकी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। हमारे साथ पास प्रेसिडेंट जेसी राजेश शाकला जी उपस्थित है इस सेशन में, हम उनकी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। हमारे साथ हमारे आईपीपी इमीडिएट पास प्रेसिडेंट जेसी नितिन अग्रवाल जी उपस्थित है, हम उनकी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। हिमांशु भाई, प्लीज प्रोसीड। मैं आज के हमारे प्रोग्राम मेंटर जेसी सीए महावीर जैन जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमें अपना रिमार्क्स दें। Thank you, Manju. First of all, I am thankful to JCI President Vivek Bhai for giving me this opportunity to act as a mentor in this session. And once again, thanks to Bhupen Nema ji, he is the Executive Director of BNI Durg Bhilai, and who has accepted our request to be a co-host for this novel program.
I am also thankful to CA Amit Rai, chairman of Bhilai branch of Institute of Chartered Accountant of India, who has accepted our request to become a special guest on this seminar. And I am thankful to my younger brother Ramandeep for giving his consent to act as a speaker for this program. जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग ने ये आइडिया लगाया था कि भाई सब लोग जीएसटी दे दे के तो परेशान हैं, सबको ऐसा लगता है कि यार जीएसटी में कोई भी ऐसी चीज हो कहाँ सकती है जिसमें कुछ हमको प्रॉफिट मिल सके। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके बारे में अगर बिजनेसमैन जानकारी रखेगा तो जीएसटी से भी कैसे वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता है। एक एग्जांपल की बात करूंगा कि जैसे आपको मालूम है कि जीएसटी आने से पहले वैट और एक्साइज ड्यूटी लगता था। आज हमारा एक सीए ऑफिस है। हम पहले जब भी कुछ खरीदते थे अपने ऑफिस के लिए, जैसे हमने एयर कंडीशन खरीदा, लैपटॉप कंप्यूटर खरीदा, पेपर्स खरीदते हैं प्रिंटिंग पेपर के लिए, तो पहले हम ध्यान नहीं देते थे। हमें मालूम है कि ठीक है जहां से भी वो लेके आ रहा है उसमें वैट लगेगा या एक्साइज ड्यूटी लगेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है तो हमको तो जितने रुपए का पड़ रहा है उतने रुपए का ही पड़ेगा। पर जीएसटी आने के बाद चीजें चेंज हो गई। जैसे आपको मैं बताऊं, जीएसटी आने के बाद हमारे यहाँ पे रेगुलर में प्रिंटिंग पेपर आता है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आपको मालूम है सीए ऑफिस में प्रिंटिंग पेपर्स लगते हैं। तो प्रिंटिंग पेपर में क्या होता है कि पहले हमारा जो स्टाफ है वो प्रिंटिंग पेपर लेके आता था। सेक्टर 10 की एक शॉप है जहां से वो प्रिंटिंग पेपर अगर एक साथ 10 का बंडल लेके आता है तो 1100 रुपए का प्रिंटिंग पेपर आता है। 1100 रुपए में आप मानेंगे नहीं 190 रुपए जो है वो जीएसटी होता है। कितना रुपए? 190 रुपीज जीएसटी होता है। पहले क्या होता था कि एक कंपोजिशन डीलर है, वहां पे क्या होता है आपको आज की डेट में मालूम है, शॉप में सामने लिखा रहता है कि कंपोजिशन डीलर। इसका मतलब अगर आप वहां से अगर कोई चीज खरीद रहे हैं तो वो जीएसटी में उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपोजिट डीलर की तरह है, इसीलिए वो आपको 1100 रुपए का पेपर जरूर देगा, पर उसमें कहीं भी जीएसटी का ब्रेकअप नहीं होगा। वो 1100 रुपए का टोटल लिखा रहेगा कि ये टोटल प्रिंटिंग पेपर 1100 रुपए का है जो हमारे यहाँ ऑफिस में आएगी और वो यूज हो जाएगा, और उसमें कहीं भी कोई जीएसटी का इनपुट क्रेडिट हमारे ऑफिस में नहीं मिलेगा। पर यही चीज को हमको जानकारी थी, इसलिए हमने तुरंत बोला कि बॉस अभी आप प्रिंटिंग पेपर कहीं से भी लेके आएंगे तो प्रिंटिंग पेपर शुड बी फ्रॉम ए रजिस्टर्ड जीएसटी डीलर जो अलग से जीएसटी चार्ज करता है, नॉट ए कंपोजिट डीलर। तो आप मानेंगे नहीं कि आज इतना पेपर की खपत है, अगर वो उसको मालूम है तो वो वाली शॉप में जाता है जिस शॉप में जीएसटी जो है रेगुलर रजिस्टर्ड है। वहां पे अगर हम पेपर लेके आते हैं तो 1100 रुपए में अगर 180 रुपए जीएसटी लगा हुआ है तो मेरे लिए वो 920 रुपीज का ही पेपर है। 180 रुपीज डायरेक्टली मेरे इनपुट क्रेडिट में आता है जो कि मैं अपनी आउटपुट लायबिलिटी से लेस कर सकता हूं, जो मैं अपने क्लाइंट से जीएसटी कलेक्ट करता हूं। तो इसीलिए मेरा प्रॉफिट जो है वो डायरेक्ट 180 रुपीज से बढ़ गया। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हैं जिसका अगर बिजनेसमैन ध्यान रखे तो वो कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता है। विथ नॉट वेस्टिंग मच टाइम, नाउ वी विल हैंड ओवर द माइक टू हिमांशु जी so that he can transfer the mic to Ramandeep bhai for the further proceeding. Thank you very much all. थैंक यू सो मच महावीर सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माइक आज के हमारे एस्टीम स्पीकर सीए रमनदीप सिंह भाटिया जी को हैंडओवर करता हूं ताकि वो आप सभी से बातें कर सके, आगे बढ़ सके। वेलकम रमनदीप सिंह भाटिया सर। थैंक यू हिमांशु जी। I will just start my screen so that I can Himanshu ji, if you can confirm me that my screen is visible properly. Yes sir, it's visible sir. Thank you sir. Good afternoon all respected members of JCI, BNI, members from trade, industry and commerce, and I have learned that students have also joined. So dear students, today I have been given a task to deliberate upon GST, and I have also been informed to tell you about raising loans in case of startups, in case of a new entrepreneurs also. Going by the topic, how to make profit out of GST. I mean, some people may be wondering that GST is always an outflow of tax, outflow of funds involved. How somebody could make profit out of it? But let me share you those people who are. I think I should better use English and Hindi both. अगर आप GST, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने देखा होगा कि एक साइड रहता है जहां हमारी सारी इनकम्स रहती है और दूसरी साइड हमारा सारा एक्सपेंडिचर रहता है। तो हम प्रॉफिट तक कैसे आते हैं? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दैट इज ऑल अवर प्रॉफिट।
यानी आप ये एग्री करते हैं कि हमारा प्रॉफिट सिर्फ ज्यादा इनकम बढ़ने की वजह से नहीं होगा, कई बार हमारे जो अननेसेसरी के जो खर्चे हैं अगर हम उन्हें अवॉइड कर ले, उन्हें कम कर ले, तो भी हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। आज ड्यूरिंग द डेलिब्रेशन में ज्यादातर काम आपका वही करने वाला हूं। मैं आपको ज्यादातर आपके एक्सपेंडिचर्स को कम कैसे करना, आपको कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जो कि पूरे जीएसटी की जान आप बोल सकते हैं, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो कैसे आप प्रॉपरली ले सकते हैं, किन किन चीजों पे ले सकते हैं। महावीर जी ने अभी अभी आपको वो चीज बताई भी कि एक एग्जाम्पल और उदाहरण के तौर पर, मैं उसी में ही आपको और कुछ चीजों के बारे में टच करूंगा, कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप ये सब जो फिजूल खर्चे जो हम जीएसटी में हम कुछ केयरलेसनेस के कारण हम कर देते हैं, हम अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम उन पे कंट्रोल पा सकते हैं। जीएसटी को आए हुए अब 3 साल हो चुके हैं। आज मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम सब काफी एक एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हैं, हमारे इश्यूज भी काफी एडवांस हो चुके हैं। तो मैंने आज कोशिश की है कि मैं आप सबको कुछ ऐसे ही एडवांस इश्यूज के बारे में आपको बताऊंगा जो हम देख रहे हैं कि डे टू डे में जो गलतियां व्यापारी या बिजनेसमैन या इंडस्ट्रीज में हो रही हैं, वो सारी चीजें आपको एक समराइज स्नैपशॉट के फॉर्म पे अवेलेबल टाइम में आपको बताया जा सके। पर इसके अलावा भी अगर आप कोई भी ऐसी क्वेरी अगर आपके मन में आ रही हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि वो कितनी ऑकवर्ड क्या कितनी भी सिली हो, आप जरूर खुल के क्यू एन सेशन में मुझे जरूर बताएं। बाय द टाइम मुझे अच्छा लगेगा कि आप चैट बॉक्स में भी कुछ कुछ चीजें आप डालते रहें, आप बताते रहें, तो भी मुझे इस मैटर में भी बताते रहें तो मुझे अच्छा लगेगा। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जीएसटी के बारे में, जरा सा ब्रीफ में आपको टच कर दूं कि स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं होगा, जो ऐसा सोचते होंगे कि यार हम तो बिजनेस करते ही नहीं है, हमारा क्या लेना देना, हमको जीएसटी से क्या मतलब। मैं बता दूं आपको कि हम नहीं चाहते हुए भी डे टू डे एक्टिविटी में, डे टू डे लाइफ में हम जीएसटी से गुजर रहे हैं और जीएसटी हमारे से कनेक्टेड है। हमें कि एक आम इंसान, एक आम नागरिक के तौर पर जब भी हम बाजार से कोई चीजें खरीदते हैं या कोई चीजें लेते हैं, तो आपको एज अ जीएसटी उसके ऊपर बर्डन बियर करना पड़ता है। वो आप ही हैं जो इसका बर्डन बियर करते हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो उसका बर्डन बियर कर रहे हैं, लेकिन वो बर्डन बियर करते हैं। आप बाजार से कोई भी चीज खरीदे, चाहे आप रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप पे जाकर एक कॉफी पर पिए, या आप अब केमिस्ट की शॉप जाकर कोई दवाई ले रहे हैं, वहाँ ये सब चीजों पर जीएसटी एप्लीकेबल है। और इन सब से जुड़ी बारीकी आपके काम आने वाली चीजें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में हमें जानना जरूरी है। अगर हम एंटरप्रेनर नहीं है या हम एक बिजनेसमैन नहीं है, हम एक प्रोफेशनल नहीं भी है, तो एक आम नागरिक के तौर पर जो एक बिजनेस में जाकर या एक व्यापारिक तौर पर कई चीजें खरीदता है और देखता है, उसके लिए भी आपको ये सारी चीजें जानना जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज के इस डेलिब्रेशन में मैंने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए रखे हैं, जैसे कि स्टार्टिंग करूंगा बेसिक्स, रजिस्ट्रेशन, रिवर्स चार्ज, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आज का हमारा जान रहेगा, मेजर टाइम हम इनपुट टैक्स क्रेडिट में देंगे, जीएसटी रिटर्न्स ऑडिट, जीएसटी टीडीएस, टीसीएस, इंटरेस्ट, ई वे बिल, रिफंड्स, नोटिस, इन्वेस्टिगेशन, और आज के लास्ट पार्ट में मैं आपसे लोन्स के बारे में भी बात करूंगा, स्टार्टअप्स की फंडिंग से रिलेटेड के बारे में भी मैं आप सबसे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी बात करूंगा। आज के सेशन में मैं लाइव प्रैक्टिकल कर भी आपको दिखाना चाहूंगा कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सप्लायर जिनसे आप माल खरीदते हैं या आप जिनसे परचेज करते हैं, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और कानून इस तरीके से आते जा रहे हैं, नए नए कानून आते जा रहे हैं कि शायद अब आप ये चांस नहीं ले सकते कि आप किसी एक ऐसे सप्लायर से डील कर रहे हैं जो कि जीएसटी का कंप्लायंस अच्छे तरीके से नहीं करता, या जीएसटी के रिटर्न्स अपने टाइम पे नहीं भरता, या जीएसटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं करता। तो आपके पास ऐसे कौन से विकल्प है कि आप जाकर देख सके, आप जाकर चेक कर सके, या आप अपने परचेज ऑर्डर्स को कैसे अमेंड कर सकते हैं, आप उनसे डील करते टाइम किन किन सावधानी बरत सकते हैं, और आप जब किसी जीएसटी के इनवॉइस ले रहे हो तो आप किन किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। इन सब बारीकियों पर आज आपके साथ मैं इस दिए गए हुए समय पर आपसे बात करने के लिए तैयार। तो आइए शुरुआत करते हैं रजिस्ट्रेशन पे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन
किसे लेना होता है, कब लेना होता है। रजिस्ट्रेशन दो तरीके के होते हैं, एक रेगुलर रजिस्ट्रेशन और एक कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन। पहले मैं आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता हूँ। अगर एक आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गुड्स में डील करते हैं, कमोडिटीज में डील करते हैं, माल में डील करते हैं, तो आपको एग्रीगेट, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख रुपए तक है साल भर का, तो आपको किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लॉ कहता है कि आपका रजिस्ट्रेशन 40 लाख से ऊपर जब जाता है तो ही आपको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता पड़ती है, और इस 40 लाख में आप इंटरेस्ट की इनकम भी ले सकते हैं। मैंने इस शब्द को जानबूझकर थोड़ा सा वर्डिंग दिया, एक्सक्लूसिवली गुड्स, यानी कि केवल गुड्स में ही अगर आप डील करते हैं। परंतु अगर आप सर्विस में डील करते हैं और गुड्स के साथ साथ सर्विसेज में भी डील करते हैं, तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर जैसे ही 20 लाख से ऊपर होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। आपको रजिस्ट्रेशन लेना लॉ के द्वारा कंपलसरी होता है। उदाहरण के तौर पर कि अगर आपकी एक मोबाइल शॉप है और आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल बेचते हैं, तो आपका 40 लाख रुपए का टर्नओवर जैसे ही क्रॉस होगा तो आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आती है। परंतु अगर आप मोबाइल शॉप के साथ साथ रिपेयर की शॉप भी चलाते हैं, जहां आप मोबाइल के रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और उसकी वर्कशॉप भी रखते हैं, सर्विसेज भी देते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी 20 लाख रुपए से ही स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि लॉ ने एक्सक्लूसिवली गुड्स के लिए 40 लाख की लिमिट रखी है और सर्विस के लिए 20 लाख रुपए की लिमिट रखी है। फिर हमसे कई बार ये गलती होती रहती है कि ये एग्रीगेट टर्नओवर में जो 40 या 20 हमने अभी देखा, इसमें क्या क्या चीजें जोड़नी चाहिए। तो कई बार ये गलतियां हमसे होती है या देखने को मिलती है कि लोग अपनी कुछ अदर सोर्सेज से आई हुई इनकम को नहीं जोड़ते। वो सोचते हैं ये हमारी बिजनेस की तो इनकम ही नहीं है, ये आनी ही नहीं चाहिए। पर जीएसटी एक्ट और जीएसटी कानून इन इनकम में कोई बैर नहीं करता कि वो इनकम बिजनेस से हो रही हो, आपके पर्सनल इनकम से हो रही हो, आपको उससे इंक्लूड कर ही आपके टर्नओवर को देखना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए आपने किसी को अनसिक्योर्ड लोन दिया, उससे आ रहा हुआ इंटरेस्ट इनकम है, दो ये इंटरेस्ट इनकम एग्जम्प्ट कहलाता है, पर फिर भी आपको अपने टर्नओवर में इंक्लूड कर देखना पड़ेगा 40 या 20 लाख रुपए की लिमिट को। जब आप फिक्स्ड एसेट सेल कर देते हैं, अब आप ये सोचेंगे कि अरे फिक्स्ड एसेट बेचना तो मेरा कोई व्यापार नहीं है, पर हाँ, अगर आपने बिजनेस से जुड़े हुए कोई फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया तो वो भी आपके टर्नओवर का पार्ट बनते हैं और आपको उसे 40 या 20 लाख की लिमिट में इंक्लूड करके देखना है। रेंटल इनकम अक्सर आपके बिजनेस का पार्ट ही नहीं होती, वो आपके इनकम टैक्स में आप उस पर अलग से टैक्स भरते हैं और वो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं होता। तो कई बार हमें ये लगता है कि ये तो मेरे बिजनेस का पार्ट ही नहीं है, तो इस पे जीएसटी थोड़ी आना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी सोर्स से अगर कोई इनकम कमा रहे हैं तो आपको उसे आपके एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करना है। अभी हाल ही में ऐसे ही व्यूज के साथ एक एडवांस रूलिंग अथॉरिटी होती है जीएसटी की, जिन्होंने इस व्यू को कंफर्म किया है, इस अथॉरिटी ने कंफर्म किया है कि हाँ, आपको ये सारी इनकम्स को जोड़कर ही आपके एग्रीगेट टर्नओवर को देखना है। तो आप चेक करिएगा कभी कि शायद कहीं मेरा कुछ नहीं तो इंटरेस्ट इनकम मिलाकर या मेरे रेंटल इनकम मिलाकर मेरा टर्नओवर 20 या 40 से ऊपर जाता है क्या। अगर जा रहा है तो मुझे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। और किसी दिन भी अगर आप आजकल देखिए इनकम टैक्स और जीएसटी के डेटाज आपस में शेयर होते हैं, गलती से अगर आपके टर्नओवर इनकम टैक्स के रिटर्न में ज्यादा चले जाते हैं, वहां से भी जीएसटी रिटर्न से डेटा बोरो कर आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो मुझे जीएसटी कब लगाना स्टार्ट करना है, तो कई लोगों को ये भी भ्रम रहता है कि मैंने रजिस्ट्रेशन आज ले लिया, जब मेरा टर्नओवर 40 के क्रॉस होगा या 20 लाख रुपए क्रॉस होगा तब मुझे उस पर जीएसटी लगाना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपने जिस दिन से रजिस्ट्रेशन लिया उस दिन से सिंगल रुपए पर भी आपको जीएसटी लगाना कंपलसरी है। सर्विस टैक्स के जमाने में ऐसा हुआ करता था, जब आप 10 लाख रुपए तक आप रजिस्ट्रेशन ले लेते थे तो भी आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, पर जीएसटी आने के बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं आपको पहले रुपए से ही आपको जीएसटी लगाना कंपलसरी रहता है। उसके बाद कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन ये एक ऐसी सुटेबल स्कीम है जो कि स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनाई गई है। ये वो लोग हैं जो जनरली B2C ट्रांजेक्शन्स में ज्यादा डील करते हैं। B2C कहने का मतलब ये है कि जो डायरेक्टली कस्टमर से रिलेटेड डील करते हैं, जिनके प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करता है और वो यूज कर लेता है। जैसा मैंने आपको नाम ही बताया, ये कंपोजिशन वाले पर्सन जो फैसिलिटी है, ये
बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस के साथ आती है। ये हर बंदे के बिजनेस के हिसाब से सुटेबल नहीं भी है। तो इसमें डेफिनेटली कुछ क्राइटेरियाज है जो आपको फॉलो करने होते हैं। मैं पहले इसको दो पार्ट में आपको बताऊं। मान लीजिए कि आप गुड्स में डील करते हैं और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है, एक्सक्लूसिवली गुड्स में अगर आप डील करते हैं और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है, तो आप कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन के बाद पहले तो ये केवल गुड्स के लिए ही हुआ करता था, इसमें कोई भी सर्विस आप नहीं दे सकते थे। पर लॉ ने बाद में इनको अलाउ किया कि नहीं, आप थोड़ी बहुत सर्विस अगर देते हैं तो भी आप कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन गुड्स के केस में ले सकते हैं, जैसे कि 10% ऑफ द टर्नओवर या 5 लाख रुपए तक की सर्विस, विच एवर इज हायर, तक का आप दे सकते हैं। अब इसमें टैक्स कितना पटाना होता है, तो ये कहते हैं कि जितना भी आपका टर्नओवर होगा उसका 1% आपको टैक्स पटाना पड़ेगा। चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, आपको 1% आपको टैक्स पटाना पड़ेगा। पर 1% क्यों दिया जा रहा है ये समझना आपको जरूरी है। ये 1% लगता हमें बहुत अट्रैक्टिव है, पर इस 1% में डिपार्टमेंट कह रही है, लॉ कह रहा है कि आप जो भी माल खरीदेंगे उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, उसका आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आप जितने में भी माल बेचेंगे, आप अपने बायर से, आप अपने जो पर्सन आपसे कस्टमर से, आप उससे कोई भी टैक्स वसूल नहीं पाएंगे। इसका मतलब कि ना आपको आईटीसी क्रेडिट मिलेगा, ना आप उनसे कोई क्रेडिट वसूल पाएंगे। इसलिए आपको ये कंसेशनल रेट की बेनिफिट दी गई है 1% की। सर्विस के केस में पहले ये केवल रेस्टोरेंट को ये सुविधा दी गई थी। रेस्टोरेंट जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है, वो फिक्स्ड 5% की बिलिंग करके 5% का टैक्स पे कर कंपोजिशन पर्सन डील बन सकते थे। अदर सर्विसेज के केस में भी ये सुविधा आई है, जिसमें ये कहती है कि केवल जिनका टर्नओवर 50 लाख रुपए तक रहेगा उन्हें 6% फिक्स पटाकर अपना टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने दिया जाएगा। पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये कंपोजिशन फैसिलिटी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन के साथ आती है। इसमें आप एक राज्य से दूसरे राज्य माल सप्लाई नहीं कर सकते, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माल नहीं बेच सकते। ई कॉमर्स ऑपरेटर बोलना मतलब कि अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट या आप कैसे और किसी एग्रीगेटर्स के थ्रू माल बेचना चाहेंगे तो आप माल नहीं बेच सकते। नो आईटीसी नहीं ले सकते, जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। कंपोजिशन के केस में इनवॉइस अलग तरीके से बनता है, रिटर्न भी अलग तरीके से फाइल होता है। तो आफ्टरऑल ये कंपोजिशन स्कीम बेनिफिशियल किन के लिए है? ये उन लोगों के लिए रहेगी जो डायरेक्टली कस्टमर से डील करते हैं, जिनका प्रॉफिट मार्जिन 10% से थोड़ा ज्यादा होगा, अच्छा खासा होगा, तभी वो डील करना उनके लिए सुटेबल रहेगा। रिटेल कस्टमर्स के लिए जिनको आईटीसी बहुत ज्यादा नहीं आता और ना ही उनके कस्टमर्स को आईटीसी की आवश्यकता है, तो उनके लिए कंपोजिशन स्कीम बेनिफिशियल रह सकती है। ज्यादातर लोगों के लिए रेगुलर स्कीम ही बेनिफिशियल रहेगी। आगे आते हैं हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये क्या होता है, ये क्या चीज है, इससे हमें क्या पता चलता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को समझने से पहले हम इनडायरेक्ट टैक्स के मैकेनिज्म को समझते हैं। आप देखिए, आमतौर पर एक व्यापारिक ट्रांजेक्शन कैसे होता है। मैं एक सप्लायर कोई माल बेचता हूं अपने किसी बायर को, और मेरा बायर मुझसे, मैं उसे मान लीजिए 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो उससे 18% जीएसटी लगाकर चार्ज करता हूं। वो बंदा मुझे 118 रुपए वापस करता है अपने माल के बदले में, और मैं 18 रुपए कलेक्ट कर सप्लायर सरकार को वो जमा कर देता हूँ। इस तरीके से एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन होता है, यानी सप्लायर वो रिसीवर से कलेक्ट करता है टैक्स और सरकार को वो जमा कर देता है। पर ऐसे कुछ व्यवसाय हैं, ऐसे कुछ बिजनेस है, ऐसे कुछ सेक्टर्स है जो कि सरकार को ऐसे लगते हैं कि जो ये सक्षम नहीं है कि वो प्रॉपरली बिलिंग कर पाए या प्रॉपरली रिटर्न फाइल कर पाए या प्रॉपरली टैक्स कलेक्ट कर पाए। जैसे कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल देखेंगे तो आप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ऐसा हो गया, फ्रेट वाला जो सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर्स हो गए, वो नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, ये लाइबिलिटी जो टैक्स कलेक्शन की जो सप्लायर के ऊपर थी, इसे शिफ्ट कर रिसीवर के ऊपर डाल दिया, और इसीलिए इसका नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिसीवर के ऊपर डाल दिया, इसका मतलब रिसीवर जो भी माल खरीदेगा सप्लायर से, उसके ऊपर खुद टैक्स पे करेगा और खुद ही उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा। इसके लिए रिसीवर अपने आप के ऊपर खुद एक सेल्फ इनवॉइस बनाएगा और खुद उस पे आईटीसी क्रेडिट लेकर उस पे टैक्स पे करेगा। अब कई बार जानकारी ना होने के अभाव से एज अ बिजनेसमैन हम ये गलतियां करते रहते हैं कि हमको पता ही नहीं रहता कि हम कोई सर्विसेज ले रहे हैं या गुड्स खरीद रहे हैं, पर हम उस पर रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी पे ही नहीं कर रहे। क्योंकि देखिए, हमारी जनरली हैबिट ये है कि हमें तो सप्लायर बिल में लगा कर देता है, हम बिल में पे कर देते हैं।
पर अगर हमने अपने इस चीजों को, हमें पता ही नहीं है कि यार ये सर्विस लेने पे टैक्स लगेगा, ना ही बिल पे लिखा हुआ आया है, तो कई बार आपसे चूक हो सकती है, बहुत बड़ी चूक हो सकती है। और ये आपको 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद अगर पता चले, तो आपको इंटरेस्ट की लाइबिलिटी भी काफी हैवी आ सकती है, प्लस पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट है, शायद आपको वो भी ना मिले, उस पर भी डिपार्टमेंट आपकी रोक लगा दे। तो इसीलिए आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है, ऐसे कौन सी सर्विसेज है जिस पर रिवर्स चार्ज लगता है, ताकि आप उस पर प्रॉम्प्टली टैक्स पे करके उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ले, और बाद में ये आपको प्रॉब्लम ना है जब जीएसटी ऑडिट हो या डिपार्टमेंट वाले आपके असेसमेंट करे, तो वो कोई इश्यूज ना है। तो मैं आपको जरा ब्रीफली बता दूं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसपे ये लाइबिलिटीज आ सकती हैं। सबसे पहले गुड्स की कैटेगरी में जनरली जब आप एग्रीकल्चरल से ये सब कुछ चीजें खरीदते हैं, जैसे कि रॉ कॉटन हो गया, कैश्यू हो गया, बीड़ी रैपर, सिल्क यार्न, ऐसे प्रोडक्ट्स अगर आप खरीदते हैं तो उस पर रिवर्स चार्ज पे आपको खुद टैक्स पे करना पड़ता है। और उसके बाद लॉटरी जो सरकारी हमारे राज्य में लॉटरी नहीं चलती, पर जहाँ लॉटरी का व्यवसाय होता है, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी ट्रांजेक्शन अलाउ करती है, तो लॉटरी खरीदने पर जो लॉटरी व्यवसाय करते हैं, सरकार से जब वो लॉटरी खरीदते हैं तो उस पर भी उनको जीएसटी पे करना पड़ता है। उसके बाद अगर कोई भी सरकारी विभाग किसी भी यूज्ड एसेट्स या यूज्ड व्हीकल या स्क्रैप को सेल करता है, तो वो जीएसटी आपको नहीं लगाएगा, आपको खुद लगाकर चार्ज करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि गवर्नमेंट पुलिस विभाग, बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स उनके पास इकट्ठा हो जाते हैं जो कि उन्होंने स्मगलिंग के दौरान पकड़े हों या किसी अपराध के दौरान पकड़े हों, और उसकी वो नीलामी करती है एक समय के बाद, और आप नीलामी में जाकर उसे खरीद लेते हैं, सीज्ड व्हीकल को परचेज कर लेते हैं किसी टेंडर के तहत या किसी एक आम उसके तहत, तो उस पर आपको खुद स्वयं होकर जीएसटी पे करना पड़ता है। ऐसा ही स्क्रैप के केसेस में होता है। हमने जनरली देखा है कि रेलवेज बहुत सारा स्क्रैप सेल करता है, और रेलवेज तो रिवर्स चार्ज के इनवॉइस भी रेज करता है, फिर भी लोग गलतियां कर रहे हैं, उस पर टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, और बाद में ये पकड़ में आते हैं, और बाद में बहुत हैवी अमाउंट से आपको वो पे करने की लाइबिलिटी आती है विद इंटरेस्ट के साथ। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको मैंने एक ब्रीफली गाइडलाइन दी कि इस पे आपको रिवर्स चल जाते हैं। अब आते हैं सर्विसेज पे। सर्विसेज में सबसे पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यवसाय होगा जिसमें इसका इम्पैक्ट नहीं आता होगा। हर कमोडिटीज जो गुड्स में डील करती है जनरली वहां ये रहता है। आप इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और वहां एक सीमा से ऊपर अगर आप फ्रेट चार्जेस पे कर रहे हैं तो आपको रिवर्स चार्ज में इसकी लाइबिलिटी आती है। एडवोकेट से अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं तो उस पर आपको पे करना पड़ता है। अगर आप सरकार से, सरकारी विभाग से, सरकारी अथॉरिटी से कोई भी सेवाएं ले रहे हैं जो 5,000 रुपए से ज्यादा की है, जैसे कि कोई लाइसेंस फीस हो गया, या आप माइनिंग के लिए रॉयल्टी पे कर रहे हैं, रॉयल्टी फीस पे कर रहे हैं, उन सब पर आपको रिवर्स चार्ज पे खुद लाइबिलिटी पे कर उसका क्रेडिट लेना होता है। उसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज। अगर आप एक बॉडी कॉर्पोरेट है और एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट से सिक्योरिटी सर्विसेज ले रहे हैं, तो सिक्योरिटी सर्विसेज पे भी आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना पड़ता है। जेसीआई में रहकर हम कई बार स्पॉन्सरशिप सर्विसेज वगैरह लेते हैं, तो जो एंटिटी से आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है उसे स्पॉन्सरशिप सर्विस स्वयं मिल रही है, उसे खुद को उस पर रिवर्स चार्ज पे बिलिंग कर टैक्स पे करना पड़ता है, अगर वो उसे स्पॉन्सरशिप के तरीके से अपने एक्सपेंडिचर में बुक करता है। अगर वो डोनेशन देता है तो इट्स अलग डिफरेंट मैटर, पर अगर वो स्पॉन्सरशिप सर्विस के तौर पर हमें ये सर्विस देता है तो उसे खुद रिवर्स चार्ज पर आता है। इस लिस्ट में और भी कई सारे नाम है, पर मैंने आपको जो डे टू डे बिजनेस में हमारे साथ जनरली जो आते हैं वो मैंने आपको बताया। उसके बाद रियल एस्टेट बिजनेस में भी आजकल रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो गया है। हम सब जानते हैं कि 5% और 1% रेट से रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी आजकल रियल एस्टेट में आती है। अगर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट है तो उस पर 5% पे करना पड़ता है, और अफोर्डेबल हाउसिंग का रेसिडेंशियल है तो उस पर 1% पे करना पड़ता है। पर ये कंसेशनल रेट सप्लायर आपको तभी चार्ज कर सकता है, इसके नियम ये कहते हैं कि 80% परचेजेज उसके जो होंगे वो रजिस्टर्ड सप्लायर से होंगे। अगर 80% से कम के वो रजिस्टर्ड सप्लायर से लेता है तो उस पर भी उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में हैं और आप 5 या 1% रेट चार्ज करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा 80% परचेज जो है हर चीज का वो रजिस्टर्ड सप्लायर से हो। अगर रजिस्टर्ड सप्लायर से नहीं होता है तो आपको उसको रिवर्स चार्ज टैक्स पे करने की लाइबिलिटी आती है।
इनफैक्ट लेबर पेमेंट भी आपका रजिस्टर्ड से होना चाहिए, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर आप ये समय से नहीं करते हैं तो मैंने आपको बताया आपको इंटरेस्ट की बेनिफिट, इंटरेस्ट पेनल्टीज और आपको आईटीसी का जो बेनिफिट है वो भी डिनायल हो सकता है। तो अच्छा है कि ये हम प्रोएक्टिव होकर हम अपनी रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी पे समय समय पर देखते रहे और डिस्चार्ज करते रहे। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट यूज बिजनेस एसेट, अब हमारा अगला टॉपिक जो है, अक्सर हमको क्या लगता है कि जब हम किसी बिजनेस में डील करते हैं कि यार हमारा काम है गुड्स पे डील करना, गुड्स में डील करना। मान लीजिए मेरा स्टेशनरी का व्यवसाय है, तो मैं स्टेशनरी बेचता हूँ और मुझे उस पर ही टैक्स पे करना, हमको ऐसा ही लगता है। पर मान लीजिए कि मेरे शॉप में कुछ पुराने रैक्स पड़े थे जो मुझे नहीं जमे, मुझे नए बनवाने थे, तो मैंने वो रैक्स को सेल आउट कर दिया। कई बार मैं उसे स्क्रैप में बेच देता हूँ या कई बार मैं उसे नया बनाने के लिए बेच देता हूँ। तो हमको ऐसा लगता है कि अरे ये यूज्ड बिजनेस एसेट पे थोड़ी जीएसटी होता है। ऐसा पहले अर्लियर लॉ वैट तक होता था, पर अब ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके का बिजनेस एसेट बेचते हैं, वो यूज्ड है, सेकेंड हैंड है, पुराना है, स्क्रैप में भी है और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो आपको उस पर जीएसटी पे करना पड़ता है, आपको जीएसटी डिस्चार्ज करना पड़ता है। वो प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है या मोटर व्हीकल हो सकता है, आपकी किसी भी तरीके का आपका पुराना बिजनेस एसेट हो सकता है, वो सब कुछ टैक्सेबल है। आपको उस पर समय समय पे टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप समय पे टैक्स पे नहीं करते हैं तो अगेन उसके ऊपर इंटरेस्ट, लायबिलिटी, पेनल्टी बहुत ज्यादा आ जाती है। अब जनरली हमने देखा है कि कई लोग के पास बिजनेस में मोटर व्हीकल्स होते हैं, कार्स होती हैं, जिसपे जब उन्होंने खरीदा होगा तब उस पे कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिला, पर अब वो मोटर व्हीकल बेचते हैं। जनरली बिजनेसमैन अपने जो मोटर व्हीकल्स रहते हैं वो बिजनेस के नाम से ही लेते हैं ताकि उनका डिप्रिसिएशन में इम्पैक्ट मिल सके। तो अगर ऐसे कोई पुराने मोटर व्हीकल्स अगर आप सेल कर रहे हैं तो आज उस पर जीएसटी है उसके लिए, पर क्योंकि उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है और आगे भी नहीं मिल, पहले भी नहीं मिला, तो सरकार ने उसके लिए एक स्कीम लाई है जिसको बोलते हैं मार्जिन स्कीम, जो नोटिफिकेशन के तहत आई है। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ टैक्स भी कम कर दिया गया है जीएसटी का मोटर व्हीकल के लिए, 28 से 18% कर दिया गया है। जो मोटर व्हीकल 18% पे थे उन्हें 12% कर दिया गया है। मोटर व्हीकल पे जनरली सेस भी लगाया जाता है, पर सेकेंड हैंड के केस में सेस को भी हटा दिया गया है और टैक्स लगेगा, उन्होंने कहा है, केवल आपके डिफरेंस पे, सेलिंग प्राइस और डब्ल्यूडीवी पे। इसे मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए आपने 25 लाख की एक BMW कार खरीदी जो 3 साल पहले आपने खरीदी थी। आज उसकी डब्ल्यूडीवी वैल्यू मान लीजिए 15 लाख रुपए होती है आपके बुक्स में, और आप उस BMW को आज 17 लाख रुपए में बेचते हैं। तो उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू 15 लाख और आज आप उसे बेच रहे हैं 17 लाख, तो आपको जो टैक्स लगेगा वो केवल 17 माइनस 15, 2 लाख रुपए पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 2 लाख रुपए पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और वो भी इन डिस्काउंटेड रेट्स के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं मार्जिन स्कीम। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू आएगी 15 लाख रुपए और आप उसे आज 13 लाख में बेच रहे हैं और 12 लाख में बेच रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आपको किसी प्रकार का जीएसटी नहीं देना होगा क्योंकि आपकी वैल्यू नेगेटिव है। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि हम प्लानिंग कर सकते हैं, तो आप अपनी गाड़ी बेचते टाइम ये ध्यान रख सकते हैं कि उसकी डब्ल्यूडीवी क्या है, और जनरली आप उसी वैल्यू तक रखें जितनी उसकी डब्ल्यूडीवी वैल्यू है, ताकि आपको किसी प्रकार का एडिशनल जीएसटी का बर्डन ना है। कई बार हम ऐसे ट्रांजेक्शन करते टाइम इन चीजों का ध्यान ही नहीं रखते और बेच देते हैं। लास्ट में जब आप बैलेंस शीट में दिखाते हैं, जब आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, तब हमको समझ में आता है कि अरे ये तो ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन भी हुआ था और उस पर जीएसटी पे करना पड़ता है, और तब आपको हैवी अमाउंट से इंटरेस्ट भी लग जाता है जो कि बहुत पेनफुल होता है। तो आप सब इसका ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद जो लोग सेकेंड हैंड गुड्स पे डील करते हैं उनके लिए भी एक सरकार ने एक स्कीम बनाई है। सेकेंड हैंड गुड्स जैसे कि मोबाइल, आजकल बहुत ज्यादा सेकेंड हैंड ट्रेडिंग्स होती हैं, मोटर व्हीकल की बहुत ट्रेडिंग्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की ट्रेडिंग होती है। ऐसे केसेस के लिए ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि आप इस बिजनेस को किस तरीके से कंडक्ट करें। तो सरकार ने उसका ये नियम बनाया कि आपको जो स्कीम रहेगी वो आपको मार्जिन वैल्यू पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर सोचिएगा कि मेरा सेकेंड हैंड मोबाइल का शॉप है, तो मैंने किसी एक बंदे से सेकेंड हैंड पुराना मोबाइल खरीदा 5,000 रुपए का, और मैंने उस मोबाइल को आगे किसी को 5,200 रुपए पे बेचा, केवल 5,200 रुपए पे।
200 रुपए मैंने उस पर कमाए। तो लॉ कहता है कि आपको पूरे 5200 पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर हम नॉर्मल ट्रेडर रहते, नॉर्मल बायर रहते, तो हमें पूरे 5200 पे टैक्स लगाना पड़ता। पर मार्जिन स्कीम में लॉ बोलता है कि आपको केवल 200 रुपए जो आपने परचेज माइनस सेल्स पे लगाया है उस पर ही केवल आपको जीएसटी चार्ज करना है, और इसीलिए इस स्कीम को बोलते हैं मार्जिन स्कीम। ऐसे व्हीकल के लिए भी होगा और ऐसे सारे यूज कमोडिटीज के लिए जो इस स्कीम में आएंगी उस पे आपको सिर्फ सेल प्राइस और उसकी परचेज प्राइस के डिफरेंस पे ही आपको टैक्स पे करना होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो मैं आपको बता रहा था कि आज मैं सबसे ज्यादा समय आपको इसी टॉपिक पे दूंगा। ये हमारे जीएसटी की आन बान और शान है, समझ लीजिए। जीएसटी लाने का मूल स्तंभ जो है वो है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे महावीर सर भी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आप जैसे आप एक सर्विस प्रोवाइडर है, आप एक लॉयर है, आप एक आर्किटेक्ट है, या आप मान लीजिए एक व्यापारी है, ट्रेडर है केवल, जो स्टेशनरी का काम करते हैं। जब आप किसी से सेवाएं लेते थे, आप कोई ऐसी कमोडिटी खरीदते थे जो कि आपके लिए फिक्स्ड एसेट्स का काम करती, तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता था। उदाहरण के तौर पर कि अगर आप एक अपनी शॉप में अगर एक एयर कंडीशन लगाते थे तो उसका वैट का आपको क्रेडिट नहीं मिलता था, उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी उसका क्रेडिट नहीं मिलता था। पर समय बदला और ये सारे टैक्स चेंज होकर अब जीएसटी आ गए हैं। और जीएसटी जैसे कि नाम ही ऐसा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हैं, कोई भी चीज जो आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज होने वाले हैं, ऐसा कोई भी खर्चा जो किसी ना किसी तरीके से बस आपके बिजनेस से कनेक्टेड होना चाहिए, उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। बशर्ते आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें का कंप्लायंस होना चाहिए, आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए, और आपके पास कुछ जरूरी जानकारी होनी चाहिए, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। आजकल वैसे लोग काफी अवेयर हुए हैं, मैं देखता हूँ जनरली कि वो अपने जीएसटी नंबर्स को हमेशा अपने पास रखते हैं, और कोई भी बिजनेस से जुड़े छोटे छोटे भी खर्चे अगर वो करते हैं तो उस पर अपना जीएसटी नंबर्स वगैरह प्रॉपरली देते हैं ताकि आप उसका बेनिफिट ले सके। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, हम अपने बिजनेस की काफी सारी शॉपिंग अमेजॉन बिजनेस से भी करते हैं। जब मैं अमेजॉन बिजनेस से अपने ऑफिस के लिए परचेज करता हूँ तो मैंने इस बात का ध्यान रखा कि मैंने अपना जीएसटी नंबर अमेजॉन बिजनेस में डाला हुआ है, ताकि मुझे जो इनवॉइस आता है अमेजॉन बिजनेस से उस पर मुझे जो आईटीसी है, कभी कोई ऐसी कमोडिटी जो मुझे लोकल लेवल पे नहीं मिल रही है और वो मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, तो मुझे उसका आईटीसी वाला इनवॉइस आता है और मैं उस पर क्रेडिट भी ले पाता हूँ, जो जनरली हम मिस कर देते हैं कई बार। तो आपको अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, मैं उसी से शुरुआत करता हूँ। तो लॉ ने सबसे पहले बोला है कि आपके पास उसके लिए टैक्स इनवॉइस होना चाहिए या डेबिट नोट होना चाहिए। आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, और उस टैक्स इनवॉइस में कुछ जरूरी जानकारियां हैं जो उसमें मेंशन होनी चाहिए, कि जैसे कि जो बेचने वाला बंदा है उसका जीएसटीएन नंबर, जो खरीदने वाला बंदा है उसका जीएसटी नंबर सही तरीके से मेंशन होना चाहिए। उसमें यह मेंशन होना चाहिए कि आपने क्या चीज खरीदी, गुड्स या सर्विसेज, उसकी टैक्सेबल वैल्यू, उस इनवॉइस में प्रॉपरली सीरियल नंबर होना चाहिए, उस टैक्स इनवॉइस की डेट प्रॉपरली होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको इंश्योर करना है। मैं आपको बता दूं कि टैक्स इनवॉइस इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आपका असेसमेंट होगा तब आपसे कोई भी अथॉरिटी आपके आईटीसी को जस्टिफाई करने के लिए वो मांग सकती है। तो टैक्स इनवॉइस ऐसा नहीं कि लिया और आईटीसी लेकर छोड़ दिया, आपको इन टैक्स इनवॉइस को प्रिजर्व करके भी रखना पड़ता है, प्रॉपर फाइल्स बनाकर रखनी पड़ती है, आपको 5 साल तक 6 साल तक इन्हें अपने पास सेव कर भी रखना पड़ता है एक फाइल्स पे प्रॉपरली, ताकि जब तक आपका असेसमेंट ना हो जाए या कोई वो कार्रवाई करने की अंतिम डेट ना चले जाए, तब तक आप इन्हें संभाल कर रखें और आपसे कोई प्रश्न ना पूछ सके इस पे। अब कुछ जरूरी कंडीशंस होती हैं आईटीसी लेने की। पहली तो मैंने आपको बताया कि आपको टैक्स इनवॉइस आ जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपको वो माल मिल गया होना चाहिए, या आपने वो सर्विसेज रिसीव कर लेनी होनी चाहिए, तभी आपको उसका क्रेडिट मिलता है। अब उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि आपने कोई माल मंगाया और रास्ते में ही उस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और वो माल आप तक पहुंचा ही नहीं, बीच रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई उस पर, तो क्या आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? तो लॉ ने कहा नहीं, क्योंकि आपको उसका क्रेडिट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप वो माल आपके पास आता नहीं है, आपको वो रिसीव नहीं हो जाता। वैसे ही सर्विस के लिए भी ऐसी चीज है, सर्विस के लिए भी वो कहता है कि वो सर्विस आपको रिसीव हो जानी चाहिए, तभी आपको उसका क्रेडिट मिलेगा।
कई बार सोचिए आप कि हम ऐसी कुछ सर्विसेज लेते हैं जिनका पूरा पैसा एडवांस में देते हैं, सर्विस हमको बाद में मिलती है। तो इस चीज पे भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि एएमसी सर्विस वगैरह हो गया, इसका क्रेडिट भी आपको तब मिलेगा जब आपका मंथली बेसिस पे आपको वो सर्विसेज आप अवेल करते जाएंगे। और इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं और एम्फेसाइज देना चाहूंगा इस एंगल से कि आजकल हमने देखा है जो जीएसटी में कई सारी ऐसी माल प्रैक्टिसेस चल रही है, जिसमें लोग अपनी जरूरत के हिसाब से लोगों से माल तो लेते नहीं है, गुड्स तो रिसीव करते नहीं है, सर्विसेज तो लेते नहीं है, पर केवल उनका बिल खरीद लेते हैं, जिसको हम फेक बिल भी बोलते हैं, बिल ट्रेडिंग भी बोलते हैं, जो कि सरासर इलीगल और गलत है। और आप इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके अगेंस्ट कार्रवाई होती है वो सबसे पहले इसी इसी सेक्शन के दायरे में होती है, ये प्रूफ कर कि आपने तो वो माल रिसीव किया ही नहीं है, कि आपने तो वो सर्विस रिसीव की ही नहीं है। और इसके लिए पता है आपको किस एक्सटेंट तक गवर्नमेंट की तलाशी होती है या चेकिंग होती है? वो ई वे बिल चेक करती है, वो चेक करती है आपके ट्रांसपोर्टेशन के क्रेडिट बिल चेक करती है। और आपको पता है शुरुआती दौर पर यह भी पाया गया था कि कुछ ई वे बिल्स जो बन रहे थे, जो ऐसे व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे, वो स्कूटर मोटरसाइकिल के नंबर्स पर बन रहे थे। तो बाद में डिपार्टमेंट ने उस पर वाहन से उसे टैगिंग कर दी। तो अब जिस तरीके का वो व्हीकल रहता है वो भी वहां डिस्प्ले हो जाता है। यानी आप ये सोचिए कि ऐसा दिखता था कि 16 टन माल आया और गाड़ी नंबर डला रहता था स्कूटर का या मोटरसाइकिल का। तो अब वो भी करना संभव नहीं रह गया है। और डिपार्टमेंट इस लेवल तक जाकर इंटेलिजेंस पे आकर अपनी कार्रवाई कर रहा है कि मान लीजिए आपने दिखाया कि ये माल रायगढ़ से रायपुर या दुर्ग भिलाई आया, तो डिपार्टमेंट इस लेवल तक का इन्वेस्टिगेशन करती है कि वो अगर रायगढ़ से निकला था तो दुर्ग आते आते कितने टोल प्लाजास को क्रॉस किया, उसका इन वहां पर प्रूफ अवेलेबल है कि नहीं है। रास्ते में ई वे बिल की चेकिंग्स होती है कई बार कई जगह। तो ऐसे कई मासूम, कई ऐसे एंटरप्रेनर्स जिनको इनके बारे में पता भी नहीं रहता, गलती से कुछ फायदे के लिए, थोड़े बहुत फायदे के लिए वो इस रैकेट्स में फंस जाते हैं और इनका नुकसान होता है। इसलिए जब तक आप कोई ऐसे गुड्स को जेन्युइनली परचेज नहीं करते, जेन्युइनली सर्विस नहीं मिलते, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता। इसलिए आपके पास माल वो आया है, उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए, आपके पास बिल्टीज होनी चाहिए, आपके पास फ्रेट जो आपने पे किया उसका प्रूफ होना चाहिए, ताकि आपके ऊपर कोई भी ऐसा चार्ज लगे तो आप उसे जस्टिफाई कर सके। उसके बाद इसमें एक कानून ये भी है कि जो उस सप्लाई पे जो टैक्स चार्ज किया गया था वो सरकार तक एक्चुअली पहुंच गया होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा हार्श है, लेकिन ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का माल खरीदा और 18% जीएसटी पे किया। आपने तो अपने सप्लायर को 18,000 रुपए जीएसटी के साथ पे कर दिया, और मान लीजिए उसने वो 18,000 रुपए सरकार को पे नहीं किए, तो लॉ कहता है कि आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपको, दो आपने उसे पे कर दिया, लेकिन आपको उसका क्रेडिट अवेल करने नहीं दिया जाएगा। अब ये थोड़ा सा हार्श है, लेकिन आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छी चीज ये है कि आप उसका पूरा प्रूफ अपने पास रखे पूरे ट्रांजेक्शन का, कि वो पूरा ट्रांजेक्शन जेन्युइन था और आपने उसकी पेमेंट की, आपने उसके सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखे, आपने सारी चीजें रखी। ये आपको सेफ गार्ड कर सकता है, आपको बचा सकता है। फिर नेक्स्ट कंडीशन ये भी है इनपुट टैक्स लेने की, कि आपके जो सप्लायर है जिनसे आपने माल खरीदा है, उसने अपना रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए, GSTR 1 और GSTR 3 भी। अब ये भी थोड़ी सी अजीब बात है कि मैंने तो पैसे दे दिए, मैंने सारा कुछ कर दिया, अगर अब सामने वाले ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये सही है, क्योंकि लॉ ने स्पेसिफिक ये कंडीशन लिखी है कि सामने वाले ने उसका GSTR 1 फाइल कर दिया होना चाहिए, 3 भी फाइल कर दिया होना चाहिए, तभी जाकर आपको इसका क्रेडिट वो अलाउ होगा। तो इन सारी कंडीशंस का आपको ध्यान रखना है जब भी आप किसी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं। तो इसलिए जहां जो भी जेन्युइनली आप बिजनेस के खर्चे करते हैं, वहां पर आप अपना जीएसटी नंबर दे, प्रॉपरली टैक्स इनवॉइस दे, और इंश्योर करें कि ये सारी कंडीशंस को आप कंप्लाई कर रहे हैं। किसी भी तरीके से कभी भी आप इस प्रैक्टिस में ना जाएं कि आप कोई फेक बिल ले, कोई इलीगल ऐसे चीजों में फंसे, क्योंकि ये लॉन्ग रन में इतनी सारी सुविधाएं फॉरेंसिक की डिपार्टमेंट के पास आते जा रही हैं कि ये प्रोविजन लॉन्ग टर्मली बिल्कुल नहीं चलेंगे। और मैं आपको एक लेयर क्या मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे ट्रांजेक्शन कई लेयर तक जाकर डिटेक्ट हो रहे हैं, आगे 6th जनरेशन 7th जनरेशन तक जाकर डिटेक्ट हो रहे हैं।
और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आगे लोगों के लिए। तो इसे अवॉइड करना बहुत जरूरी है और केयरफुल रहना जरूरी है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें कि अपने सप्लायर्स के बारे में कैसे जान सकते हैं आप कि उसने टैक्स पे किया कि नहीं किया, 3V और R1 रिटर्न फाइल किया कि नहीं किया। जस्ट कुछ देर में मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। इससे पहले मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक नई चीज के बारे में बताता हूँ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको तभी मिलेगा जब आपके वो 2A में दिखेगा। अब 2A तो छोड़िए, अब एक नया फॉर्म आ गया है जिसका नाम है 2B। ये क्या होता है, ये जरा ब्रीफली मैं आपको बता दूं। आप जिनसे माल खरीदे हैं सप्लायर, वो अपना रिटर्न फाइल करते हैं GSTR1 के तौर पर। यानी आपको उन्होंने कितने का बिल दिया वो उसकी जानकारी GST पोर्टल में देते हैं और वो बिल की जानकारी आपके एज ए रिसीवर 2A में दिखने लगती है। जब तक आपके 2A में वो डिटेल नहीं आती तब तक लॉ कहता है कि वो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप कोई माल खरीदते हैं पर अपना GST नंबर देना भूल जाते हैं और बाद में आप उसका क्रेडिट भी ले लेते हैं। अगर आपने अपना GST नंबर दिया ही नहीं तो सामने वाला सप्लायर अपने GSTR1 में इनवॉइस नहीं डाल सकता। इनवॉइस नहीं डालेगा तो आपके 2A में नहीं आएगा, और 2A में नहीं आएगा तो आपको रूल 36 के हिसाब से क्रेडिट नहीं मिलेगा। बल्कि अब तो ऐसा हो गया है कि लॉ ने पहले रूल बनाया था कि आपको जितना आपके 2A में दिखेगा उससे केवल 10% एक्स्ट्रा लेना क्रेडिट आपको अलाउ है। वो भी ये एक्सक्यूज देकर कि सामने वाले से मान लीजिए गलती से छूट गया या कोई एरर हो गया तो 10% एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। पर कुछ इसे पालन करने में, इम्प्लीमेंट करने में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो अब इस पे एक और नया फॉर्म लेकर आ गई है सरकार जिसका नाम है GSTR2B। GSTR2A के बाद अब 2B ऐसा फॉर्म होगा जो 12 तारीख को आपके 2A को लॉक कर देगा। हर महीने की 12 तारीख को वो लॉक कर देगा और जितना क्रेडिट आपके 2A में दिख रहा होगा 12 तारीख को हर महीने उतना ही क्रेडिट आपको दिया जाएगा। उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सोचिए कि अगर आपका बंदा रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करता सप्लायर, तो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। टाइम पे फाइल नहीं करता, समय से पे नहीं करता, समय से अपना रिटर्न फाइल नहीं करता, तो भी आपको वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं लेने दिया जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने सप्लायर्स को कैसे डील करें, उनकी उनकी समझ लीजिए इन्वेस्टिगेशन बोलिए या आप लीगल वेटिंग बोलिए, ये कैसे चेक करते रहे समय समय पर कि वो अपने कंप्लायंसेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो अपने रिटर्न्स टाइम पे नहीं डाल रहे तो हम उन्हें कैसे अलर्ट कर सके, उनके पेमेंट्स ब्लॉक करके हम उनसे कैसे भी करके अपने रिटर्न्स डलवाए ताकि आपको उसका क्रेडिट ब्लॉक ना हो। अगर मैं आपको एक मैकेनिज्म एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँ तो मेरे पास एक चार्ट है जो आपको, जिससे मैं आपको ये पूरा मैकेनिज्म समझाऊं कि मान लीजिए कि जुलाई महीने में आपने कोई चीज अपने सप्लायर से खरीदी और आपके सप्लायर को आइडली उसे अगस्त महीने की 11 तारीख तक उसे डाल देना चाहिए था। और अगर उसने अपने GSTR1 में अगस्त 11 को डाल दिया रात को 11:49 तक, मतलब 11 बज के, क्योंकि 12 तारीख को जैसे ही बजेगा वो GSTR2B आपका लॉक हो जाएगा। तो 11 तारीख तक उसने अगर अपलोड कर दिया रात को 12 बजे से पहले तो आपके 2A में जुलाई महीने में ही दिखने लग जाएगा और आपके 2B में भी जुलाई महीने में आ जाएगा और आपको क्रेडिट उसका जुलाई महीने में ही मिल जाएगा। पर मान लीजिए आपके सप्लायर ने उसे 11 अगस्त की बजाय 15 अगस्त को अपलोड किया और आपके 2A में तो जुलाई में ही दिखना चालू हो जाएगा, पर आपके GSTR2B जो कि 12 तारीख को लॉक हो गया वो अगस्त महीने में शिफ्ट हो जाएगा और आपको उसका ITC अगस्त महीने में मिलेगा। यानी आपने खरीदा जुलाई महीने में पर आप उसका ITC का बेनिफिट अगस्त महीने में ले पाएंगे। इसका कारण क्यों? क्योंकि आपके सप्लायर ने अपने रिटर्न जो कि उसको 11 तारीख तक डालना था वो उसने 15 तारीख तक डाला। तो ऐसे ही अगर वो आपका सप्लायर अगर क्वार्टरली फाइलर होगा, क्वार्टरली आप जानते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा भी कि कुछ लोग GSTR1 क्वार्टरली फाइल करते हैं, तो क्वार्टरली फाइलर होगा तो वो हर क्वार्टर एंड पे आपका फाइल करेगा। तो 11 अक्टूबर को तो आपने सोचिए जुलाई का अगर ट्रांजेक्शन हुआ तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तीनों का रिटर्न वो अक्टूबर में फाइल करेगा। अगर वो 11 अक्टूबर को फाइल कर देता है तो मुझे मेरे सितंबर के 2A में दिखने लग जाएगा, 2B में सितंबर 20 को दिखने लग जाएगा और मैं उसका ITC सितंबर 20 में ले पाऊंगा। पर मान लीजिए उसने जुलाई का क्रेडिट 15 अक्टूबर को फाइल किया तो दो मेरे 2A में तो सितंबर को दिखेगा पर मेरे 2B में वो अक्टूबर में शिफ्ट हो जाएगा और मैं उसका बेनिफिट अक्टूबर में ही ले पाऊंगा।
लाखों करोड़ों रुपए के आपके क्रेडिट्स रहते हैं, जो समझ लीजिए कि अगर आपके सप्लायर ने थोड़ा सा भी डिले किया तो वो नेक्स्ट मंथ अगर आपको शिफ्ट हो गए तो आपको जेब से टैक्स पटाना पड़ जाएगा, आपको आईटीसी से पटाने नहीं मिलेगा, आपको कैश से पटाना पड़ जाएगा और वो आईटीसी शायद आपका ब्लॉक का ब्लॉक रह जाएगा या आपको इंटरेस्ट उस पर लग जाएगा। ये एक डिफिकल्ट चीज हो सकती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने सप्लायर्स को कैसे चेस करें और फॉलो अप करते रहे, ताकि आपको जो आईटीसी का रियल बेनिफिट है वो टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड किया हो सके। अब आप अपने सप्लायर की क्रेडिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, ये इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप ऐसे गूगल प्ले पे बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी अवेलेबल है जिससे आप अपने सप्लायर्स का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम सप्लायर्स का स्टेटस ना चेक करें तो हमारे पास एक और सुविधा रहती है कि आप जीएसटी पोर्टल पे भी जा सकते हैं। आप देखेंगे कि मैं एक लिंक है जो मेरी स्लाइड्स में आप दिख रहा होगा, मैं इस लिंक को जाकर कॉपी कर रहा हूँ। मेरे इस स्क्रीन पे आप आशा करता हूँ देख पा रहे होंगे। जैसे ही मैं जीएसटी पोर्टल पे जा रहा हूँ, आपको कोई किसी प्रकार के लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना लॉगिन करे gst.gov.in पर जैसे ही जाते हैं, आप सर्च टैक्स पेयर करें और यहाँ जाकर आपको आपके सप्लायर का जीएसटी नंबर डालना है। मैं यहाँ आपको अपना जीएसटी नंबर डालकर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये मैंने अपना जीएसटी नंबर इस पे डाला और मैंने ये जो कुछ सिक्योरिटी कोड्स है वो मैंने प्रेस किया, तो आप देखेंगे ये जो मेरी फर्म है उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगी। आप देखेंगे कि मेरा लीगल नेम दिख रहा है, क्या मेरा व्यापार का नाम है, मैं कहाँ रजिस्टर्ड हूँ, रायपुर में, मैंने रजिस्ट्रेशन कब लिया, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर एक्टिव है कि कैंसिल हो गया ये दिखेगा आपको, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मैं एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हूँ, मेरा टैक्स टाइप क्या है, रेगुलर है कि कंपोजिशन है, ये भी आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। और मेरा एड्रेस क्या है ये आपको दिख रहा है यहाँ पर जाकर। मैं किन कमोडिटीज पे डील करता हूँ तो देखिए इसमें दिख रहा है लीगल सर्विसेज देता हूँ और इसका ये एचएसएन कोड है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस जो आपको देखना है वो है फाइलिंग टेबल। इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखने लग जाएगा कि मैंने अभी तक के रिटर्न कब कब फाइल किया और कौन से मंथ की फाइल की और कब कब की है। देखिए मेरा जुलाई तक का पूरा रिटर्न फाइल्ड है, अगस्त महीने का रिटर्न मेरा 20 सितंबर तक ड्यू है। और आप इसमें मेरी डेट ऑफ फाइलिंग से देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट अपने सारे रिटर्न टाइम से फाइल किए जो नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख तक रहते हैं। अब सोचिए आप कि अगर इससे आपको काफी आइडिया मिल सकता है। अगर आपको ये दिख रहा है कि आपका ऐसा सप्लायर है जो 6-6 महीने अपने रिटर्न लेट फाइल कर रहा है, यहाँ इस डेट पे दिख रहा है आपको, या 2-2 3-3 महीने लेट फाइल कर रहा है, तो आपको ये कॉल लेना पड़ेगा कि ऐसे सप्लायर के साथ आपको डील करना है कि नहीं करना है। उसके बाद जीएसटीआर 1 की अगर अपन बात करें तो जीएसटीआर 1 उसने समय से फाइल किया है कि नहीं किया है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये जून तक का जीएसटीआर 1 भी फाइल है, कौन सी तारीख को फाइल हुआ। इसको देखकर आपको ये अंदाजा लगेगा कि ये हमारा जो रिटर्न फाइलर है, हमारा जो सप्लायर है वो क्वार्टरली फाइलर है। क्योंकि देखिए मार्च में एक रिटर्न फाइल हुआ था, उसके बाद जून में हुआ है, उससे पहले दिसंबर में हुआ था, उससे पहले सितंबर में हुआ था। तो आप ये आइडिया ले सकते हैं। और रिटर्न कब कब फाइल हो रहे हैं आपको ये डेट्स के साथ आइडिया मिलता है। इनफैक्ट मेरे एनुअल रिटर्न फाइल हुए कि नहीं जीएसटीआर 9 वो भी आपको यहाँ दिखेंगे कि मैंने 17-18 का एनुअल रिटर्न भी फाइल कर दिया है, मैंने 18-19 का भी एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया है। और इस तरीके से आप किसी की भी प्रोफाइल को जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आप जो जिनके साथ डील करने वाले वो आफ्टर बंदे कैसे, सेफ है कि नहीं, टैक्स समय पर पे करते हैं कि नहीं, रिटर्न समय से फाइल करते हैं कि नहीं। मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी सरकार ने जब जीएसटी लाया था तो एक स्कीम भी बनाई थी कि हर वेंडर की वो एक रेटिंग बनाकर रखेंगे, रेटिंग डिस्क्राइब करेंगे कि वो रेट किस लेवल का बंदा है। वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है पर बहुत जल्दी होने की है, जिससे हमें आगे चलकर ये पता चलेगा कि वो पर्सन कैसा है और किस टाइप का है। आशा करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा और हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसा टूल है जिससे आप क्रेडिबिलिटी चेक कर सकते हैं अपने सप्लायर्स की। उसके बाद जीएसटीआर 2A में क्या कर सकते हैं कि आप ये इंश्योर करें कि आपका सप्लायर जो है आपके 2A में वो सारे इनवॉइस टाइम से डाल दे।
मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब अपने परचेज ऑर्डर्स को, अपने एग्रीमेंट्स को, अपने टर्म्स कंडीशंस को इस तरीके से फ्रेम करना पड़ेगा कि हम अपने सप्लायर्स को आज भी ये प्रेशराइज रखे कि उन्हें अपना रिटर्न टाइम से फाइल करना पड़ेगा। अगर वो रिटर्न अपना टाइम से फाइल नहीं करते तो आप अपनी कंडीशन रखिए कि आपको टैक्स का पैसा GSTR 2A में दिखने के बाद ही हम पे करेंगे, या अगर आप उतना पेमेंट चाहते हैं तो हम उतना आपका ब्लॉक कर देंगे पैसा जब तक आपका 2A पे नहीं दिखेगा। ना ही दिखने से आपको टाइमली कंप्लायंस के लिए उस पर एक डेडलाइन टाइम भी डालना चाहिए कि ये आपको इतने तारीख तक आपको इसका रिटर्न डल जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका सप्लायर एट लिबर्टी रहेगा, जब मर्जी आएगी तब डालेगा, और आपका ऐसा होगा कि आपको क्रेडिट जो जिस समय मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अब ये जो प्रोविजंस हमारे सामने है, इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट नीड है कि हमें अपने परचेज ऑर्डर्स को, टर्म्स कंडीशंस को, पेमेंट्स की ब्लॉकेज को, पेमेंट्स के पेमेंट को, रिकवरी को कुछ इस तरीके से हमारे 2A के साथ, 2B के साथ अलाइन करना पड़ेगा ताकि हमें टाइम से क्रेडिट मिल सके और हमारा किसी प्रकार का नुकसान ना हो, हमें समय से उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सके। तो ये एक जरूरी चीज है जो आपको अपने उसमें करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट कानून आया है जो कि फेक बिल से रिलेटेड है, रूल 86 से। मैं बताना चाहूंगा कि इसमें ये एक ऐसा पावर है जो कि असिस्टेंट कमिश्नर्स या उससे हाई लेवल के ऑफिसर्स के पास अवेलेबल रहता है। तो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफिसर्स के पास अगर आप सबूत है आपके खिलाफ कि आपने कोई गलत तरीके से अवेल किया है, तो वो आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर्स को ताला लगा सकते हैं, वो आपके इनपुट टैक्स रजिस्टर्स को बंद कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, जिससे आप वो यूज नहीं कर सकते। और ये कारण क्या है, उसमें लिखा है कि हो सकता है टैक्स इनवॉइस इशू करने वाला बंदा अवेलेबल ही ना हो। आजकल जैसे हम फेक बिल्स के ट्रांजेक्शन देखते हैं ना, 10x10 के कमरे से लोगों के 800-800 करोड़ के ट्रांजेक्शन निकल के आते हैं, 1,000 करोड़ के बिल बन जाते हैं, पर ऐसा कोई बंदा जब वहां जाकर देखा जाता है तो मिलता ही नहीं। उसने सरकार को टैक्स ही पे नहीं किया रहता और लोगों ने उस पर क्रेडिट ले लिया रहता है। वो ऐसा बंदा है जो क्रेडिट ले रहा है, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, उसके पास इनवॉइस की कॉपी नहीं है। अगर ऐसा किसी भी तरीके का सबूत एक अथॉरिटी के पास है तो वो आपके क्रेडिट लेजर पे ताला लगा सकती है, वो आपके क्रेडिट को अलाउ करना बंद कर सकती है। इसलिए ये एक सावधानी के तौर पर आपको ये समझना चाहिए कि आप किसी भी ऐसे सप्लायर से डील कर रहे हैं जो आपको सस्पिशियस लग रहा है, जो ऐसा लगता है आपको कि टैक्स नहीं पे करता है या नया है, अनजान है, तो आपको बहुत केयरफुली उनसे डील करना चाहिए, क्योंकि इसकी सजा एज अ रिसीवर आपको मिल सकती है, उसे मिले ना मिले। तो आपको थोड़ा सा इस पे सेफ्टी लेकर काम करना चाहिए। अब GST में क्रेडिट किन चीजों का मिलता है? मैं कहता हूं आपको सारी चीजों का क्रेडिट मिल जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो खर्चा केवल आपके बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए। आप हर चीज का क्रेडिट ले सकते हैं। तो किन चीजों का क्रेडिट नहीं मिलता ये खाली मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपका ऐसी कोई भी चीज है जो आप क्रेडिट चाहे उसका आप क्रेडिट ले सकते हैं। आप किसी फेयर में जाते हैं, किसी बिजनेस ट्रिप में जा रहे हैं, आप उसकी फ्लाइट की टिकट लेते हैं, आप उसके ट्रैवल एजेंट से बिल लेते हैं, उसका क्रेडिट ले सकते हैं। आप एयर कंडीशन परचेज करते हैं, आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। आप किसी भी तरीके के बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो, आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू आपने प्रॉपर इनवॉइस दिया, GST नंबर डलवाया अपना, उसका भी इंश्योर किया, और ये सारी फॉर्मेलिटीज जो अभी अपन ने डिस्कस की वो देखी। किस चीज का आपको क्रेडिट नहीं मिलता, आइए फटाफट बात कर ले। सबसे पहले कहते हैं व्हीकल का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, मैंने व्हीकल की जब बात कर रहा हूँ तो मैं आपको पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल की बात कर रहा हूँ, यानी कि मोटर व्हीकल, कार की बात कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा व्हीकल लेते हैं जिससे कि आप माल ढुलाई करते हैं, गुड्स के करते हैं, तो उसका क्रेडिट आपको मिलता है। पर कार लेंगे तो उसका नहीं मिलेगा, ना ही उसके रिपेयर मेंटेनेंस का, ना ही उसके इंश्योरेंस का आपको मिलेगा। फूड एंड बेवरेजेस का नहीं मिलेगा आपको। मैंने देखा कि अब लोग थोड़े ज्यादा ही अवेयर हो गए। एक बार मैं किसी एक रेस्टोरेंट पे खाना खा रहा था तो एक बंदा जब वेटर बिल लेकर आया तो उसे कह रहा था कि अरे आपने तो 5% GST लगा दिया है। उसने कहा सर GST लागू हो गया है। तो उसने कहा कि ये एक काम करो, अगर आप 5% GST चार्ज कर रहे हो तो मेरा भी GST नंबर डाल के लेकर आओ। वो वेटर उससे रिक्वेस्ट करता रहा, फाइनली उसका मैनेजर भी उसको बोलता रहा कि नहीं सर, ये हमारी पॉलिसी में नहीं है कि हम आपका GST नंबर नहीं डाल सकते इसमें। पर वो बंदा बहुत लड़ा उससे कि अरे तुम नहीं डालोगे तो मैं इससे क्रेडिट कैसे लूंगा। ये अच्छी बात है कि वो अवेयरनेस अब लोगों में आ गई है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि फूड एंड बेवरेजेस का क्रेडिट ब्लॉक किया हुआ है। किसी भी तरीके का फूड एंड बेवरेजेस का क्रेडिट आपको नहीं मिलता, एक्सेप्ट जब अगर आप अपनी फैक्ट्री प्रेमाइसेस में कोई कैंटीन ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट आपको मिलता है।
किसी भी तरीके का केटरिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, किसी भी मोटर व्हीकल की लीजिंग हायरिंग पे आपको नहीं मिलेगा। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको सब्जेक्टिव बेसिस पे मिलता है। अगर आपको लॉ ने बोला है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपलसरी कराना है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी कराना है, तो आपको इसका क्रेडिट बेनिफिट मिल जाएगा। वैसे ही हेल्थ क्लब, फिटनेस सेंटर का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हैं कैपिटल नेचर की, जब मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलता हूं तो इसका मतलब बिल्डिंग हो गया, आप बिल्डिंग हो गया या उसमें लगने वाले सामान हो गए या चीजें हो गई, तो उसमें जुड़ी हुई कोई भी सर्विसेज, कोई भी गुड्स और सर्विसेज पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उस पे आप ईटा खरीदते हैं तो वो 5% टैक्सेबल है, सीमेंट खरीदते हैं, रेती खरीदते हैं, वो सब पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट है, अगर आप एक ठेकेदार है जो आगे भी यही सर्विस देने का काम करते हैं, तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा, फिर लॉ ने यह भी बोला कि अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो कि नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस के लिए खर्चा कर रहे हैं, भाई मेरे घर का नल टूट गया, ये ऑफिस का नल टूट गया है, या आपका थोड़ा बहुत सीमेंट का प्लास्टर करके रिपेयर करना है, रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे का वो कहते हैं मिल जाएगा। पर अगर आप कोई एक कैपिटल नेचर का खर्चा कर रहे हो और जिसमें कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग इस पे गलतियां कर रहे हैं कि इसका भी क्रेडिट ले लेते हैं और जब बाद में रिवर्स करने की बात आती है तो वो बहुत हैवी लगता है, विद इंटरेस्ट के साथ हमें पे करना पड़ जाता है। पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर आप कोई भी चीज लेते हैं तो वो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई गुड्स खरीदा और वो गुम गया, डिस्ट्रॉय हो गया, स्टोलन हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया, आपने उसे गिफ्ट दे दिया किसी और को या सैंपल के तौर पर बांट दिया, तो उसका भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपके यहाँ चोरी हो गई या आग लग गई, फायर लग गई, अभी हमारे रिसेंटली एक जगह आग लग गई थी, तो उस केस में आग लग जाने के कारण जो भी आपका आईटीसी का नुकसान हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है आपकी कमोडिटीज का, उसका भी आपको आईटीसी का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि इसके अलावा आपको सारी चीजों का क्रेडिट अवेलेबल है सिवाय इन चीजों को छोड़कर। फिर कुछ रिवर्सल करने पड़ते हैं हमको आईटीसी को। आईटीसी लेना इजी है पर रिवर्सल भी आपको करना पड़ता है। मान लीजिए कि आप एक ऐसे पर्सन है जो कि एग्जेम्प्ट कमोडिटीज में भी डील करते हैं, आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड, या जैसे उदाहरण के तौर पर आप राइस मिल को ले ले, तो राइस मिल में राइस प्रोड्यूस करना एग्जेम्प्ट है, पर आप अगर कस्टम मिलिंग करते हैं तो आपको 5% टैक्सेबल है। जहां आप दोनों काम कर रहे हैं वहां आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कॉमन मिलता है। अगर आपका कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉमन होगा जो टैक्सेबल के लिए भी लग रहा है और एग्जेम्प्ट के लिए लग रहा है, उदाहरण के तौर पर एक सीए का बिल हो गया, क्योंकि सीए आपकी एज ए एंटिटी होल सर्विस देता है, तो आपको उस पर जो कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा उसका प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करना होगा एग्जाम टर्नओवर और एग्रीगेट टर्नओवर के हिसाब से। और ये रिवर्सल करना बहुत जरूरी है। बाद में जाकर अगर आपको पता चलता है तो ये बहुत पेनफुल रहता है। और उदाहरण हो सकता है पेट्रोल पंप का। पेट्रोल पंप में मेजर एक्टिविटी पेट्रोल और डीजल सेल एग्जेम्प्ट है, पर लुब्रिकेंट सेल करना टैक्सेबल है। कई बार हमें जो वो पेट्रोलियम कंपनीज जो जीएसटी चार्ज करते हैं हम उसका पूरा क्रेडिट ले लेते हैं, जबकि आपको क्रेडिट केवल टैक्सेबल पोर्शन के लिए मिलना चाहिए जो कि हमारा लुब्रिकेंट और ऑयल सेल है, बस उसी पे, बाकी आपको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। तो इस चीज पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी एग्जेम्प्ट कारोबार करते हैं तो उसका जो कॉमन क्रेडिट है वो आपको रिवर्स करना है रूल 42-43 के तहत। इससे मैं आगे आपको नोटिस और इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताऊंगा। नोटिस और इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो अब हम देख रहे हैं कि लॉ में धीरे धीरे जब जीएसटी एडवांस हो रहा है तो बढ़ते जा रही है। नोटिस इन्वेस्टिगेशन में कई बार आपको बिल आ रहे हैं, कई बार आपको नोटिस आ रहे हैं, तो सबसे पहली और रिलेवेंट चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये देखना चाहिए कि अगर वो नोटिस सीजीएसटी डिपार्टमेंट से आ रहा है, यानी कि सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट से आ रहा है, तो उसमें डीआईएन नंबर है कि नहीं। डीआईएन नंबर का मतलब होता है डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक ऐसा नंबर है जो कि एक यूनिक नंबर है जिसे आप ऑनलाइन जाकर वेरीफाई भी कर सकते हैं। कोई भी नोटिस इसके बिना आया हुआ इनवैलिड है। ये इसलिए अपनाया गया है आजकल क्योंकि बढ़ते हुए अपराध जो हो रहे हैं, फेक नोटिस जनरेट हो रहे हैं, इनको मद्देनजर रखकर आजकल डिपार्टमेंट ने ये भी कंपलसरी कर दिया है कि किसी भी तरीके का कोई नोटिस अगर
इशू किया जा रहा है तो उस पर DIN होना कंपलसरी रख दिया। इनफैक्ट अगर किसी भी तरीके का सर्च या सर्वे भी हो रहा है तो उसका भी अगर आप सबसे पहले आपके पास कोई आता है तो ये बहुत जरूरी है कि आप चेक करें कि वो प्रॉपर नोटिस है कि नहीं, उसमें DIN नंबर है कि नहीं, और वो नोटिस जो है वो प्रॉपरली किसी एक ऑफिसर के द्वारा ऑथोराइज है कि नहीं। और आगे अभी ये देखने को भी मिल रहा है कि नोटिस की जो कॉपी रहती है वो आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म पर बाय पोस्ट वगैरह नहीं आ रही है, या पहले ट्यून्स वगैरह बाय हैंड डिलीवर करते थे, अब वो नोटिस की कॉपीज आपको वैलिडली ईमेल के जरिए आ रही है, जो ईमेल आपने अपना GST रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हमारे रूल लॉ में सेक्शन 136 है जो परमिट करता है कि आपको जो नोटिस की कॉपी है वो ईमेल पे भी सर्कुलेट की जा सकती है और वो वैलिड नोटिस कहलाता है। हम में से बहुत सारे ऐसे व्यापारी भाई बंधु होंगे जो ईमेल चेक भी नहीं करते, जो एक फॉर्मेलिटी के लिए बना लिया गया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको नोटिस के बार बार कॉपीज आ चुकी होंगी और आपने कोई एक्शन नहीं लिया, और इसके कारण आपका काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि अगर आप आगे से अभी आप जो भी आपने ईमेल आईडी आपके GST डिपार्टमेंट को दिया है उसे टाइम टू टाइम देखते रहे, कोई नोटिस जैसी चीज लगे तो आप उसे चेक कराएं, वेरीफाई करें। DIN भी इंश्योर करें CGST से। SGST ने अभी तक ये कंपलसरी नहीं किया पर आने वाले समय में वो भी जल्दी ही कंपलसरी कर देगी। आपको बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर SGST में भी कंपलसरी हो गया। आगे एक और प्रॉब्लम जो अक्सर व्यापारी को या बिजनेसमैन को देखने को मिलता है वो है ड्यूअल अथॉरिटी। जनरली आप जानते हैं कि बिल में CGST भी लगता है, SGST भी लगता है, और दो दो अथॉरिटी हमें कई बार प्रताड़ित करती है। दोनों अथॉरिटीज हमें ये बोलते रहती है कि कैसे हमें किस किस तरीके से हमें इस पे दोनों तरीके से कार्रवाई होते रहती है। कभी हमें नोटिस CGST से भी आते हैं, SGST से भी आते हैं, और इस तरीके से ये पूरे कार्रवाई चलते रहती है। तो क्या आपको दोनों अथॉरिटीज परेशान कर सकती है? तो आंसर इज नो। आपको केवल आपको एक ही अथॉरिटी जो है वो आपको क्वेश्चन कर सकती है, जो आप जिनके सर्कल में आते हैं। वो ये कैसे चेक किया जा सकता है कि आप किनके सर्कल में आते हैं? तो इसके लिए आपको अपने प्रोफाइल्स पे जाकर ये चेक करना होता है कि आप CGST डिपार्टमेंट में आते हैं या SGST पे आते हैं। एक बार ये इंश्योर हो जाए कि आप CGST में आते हैं तो आप पे तो आपको ये भी तो आपको अगर आप SGST में आते हैं तो आपको CGST वाले क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर आप CGST में आते हैं तो आपको SGST वाले क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको वो नोटिस नहीं भेज सकते। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आप CGST के जुरिडिक्शन में आते हैं तो आपको SGST से कोई नोटिस आता है तो वो आप स्वीकार ना करें, उस पर ऑब्जेक्शन रेज करें। अगर आप SGST में आते हैं तो आप CGST से आए हुए किसी भी नोटिस पे स्वीकार ना करें। तो इतना ही कहकर मैं GST वाले अपने इस डेलिब्रेशन को कंप्लीट करता हूं। पर आप सबके साथ मुझे अभी एक लोन से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे इश्यूज है जिन पे आपके साथ बात करनी है, तो उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। मेरे पास 10 मिनट का टाइम अवेलेबल है, मॉडरेटर सर। यस सर, आप 10 मिनट कर सकते हैं। थैंक यू। फ्रेंड्स, अगर हम एक नए बिजनेस के तरीके से जाएं, नए बिजनेस को स्टार्ट करने जाए, एक स्टार्टअप को ले, या मैं एक नया बिजनेस चालू करने के लिए जाऊं, तो ग्राउंड लेवल पे हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसी स्कीम्स हमको सुनने को मिलती है कि ये अवेलेबल है, वो अवेलेबल है। पर ग्राउंड लेवल पे जब हम एक बिजनेस को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक नए बिजनेसमैन को बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के, बिना एक प्रॉपर गारंटी के, क्योंकि उसके पास कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं होती बैंकिंग ट्रांजेक्शन की, कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं होता, और कोई ऐसा कई बार वो उनका स्टार्टअप्स का एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट होता है कि बैंकर वो सुनना ही नहीं चाहता, उस पर दिमाग लगाना ही नहीं चाहता। वो बोलते हैं कि अरे यार ये ऐसा बिजनेस जिसमें तो कोई काम ही नहीं करेगा, और मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता कि आप इससे कमाएंगे कैसे, या इससे आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे। तो जनरली बैंक से लोन देने में एक बहुत बड़ी परेशानी देखने को मिलती है कि जिनके पास सिक्योरिटी नहीं रहती, कोलेटरल नहीं रहता, गारंटी नहीं रहती, पास्ट हिस्ट्री नहीं रहती, बैकग्राउंड नहीं रहता बिजनेस का, या वो किसी एक नए टेक्नोलॉजी
में डील करते हैं तो उनको लोन लेने में बहुत तकलीफें आती है। मेरा एक सजेशन है कि आप जब भी किसी बैंक्स में अप्रोच करने जाएं तो आपकी तरफ से आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो आपके लेवल की तैयारी है रिपोर्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, आपके रेवेन्यू मॉडल से रिलेटेड होनी चाहिए, वो बहुत अप टू डेट होनी चाहिए। जब मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करता हूं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी डिटेल डीपीआर बना होना चाहिए जिसमें आपकी पूरी स्टडीज होनी चाहिए कि वो प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करेगा, क्या टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है, आपके कस्टमर्स कौन होंगे, आपके अल्टीमेट बायर्स कौन होंगे, आप कहाँ से अपनी सर्विसेज लेंगे, क्या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, और ये सारी चीजें होनी चाहिए। विशेषकर मैंने ये देखा है कि जनरली आप एक अच्छी नई टेक्नोलॉजी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका भी बना देते हैं, पर जब तक आप ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि उस प्रॉब्लम या आपका स्टार्टअप रेवेन्यू कैसे अर्न करेगा, उसमें रेवेन्यू मॉडल क्या इन्वॉल्व है, तब तक आपको कोई बैंक लोन नहीं देगा और आपको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप एज अ फ्रेशर किसी बैंक से लोन लेने जाएं तो ये आपकी जो ग्राउंड लेवल पे जो तैयारियां है, ग्राउंड लेवल पे जो आपका वो है, वो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो स्टडीज है वो ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो, आपका जो रेवेन्यू मॉडल है वो आपका तैयार हो और जिसे आप क्लियरली प्रेजेंट कर पाए आपके इन्वेस्टर्स को, बैंकर्स को, तो आपको इससे फायदा मिलेगा। कई बार हमारे पास भी प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और सिर्फ एक वेग आइडिया लेकर आते हैं कि सर हम ऐसा करना चाहते हैं और ऐसा करना चाहते हैं, जबकि उनकी तैयारी इस पे दिखती नहीं है कि डिटेल ग्राउंड लेवल पे प्रोजेक्ट कैसे चलेगा। ना ही उनको पता है कि इसके लिए नेसेसरी परमिशंस क्या जरूरत है, ना ही इसका अप्रूवल किन से लेना है। एक डीपीआईआईटी का रिकॉग्नाइजेशन चाहिए रहता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड का, वो नहीं पता है उनको, तो बात नहीं बनती। जहां पर भी आपकी तैयारी कमजोर है, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वीक है, आपके पास रेवेन्यू मॉडल्स प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, कोई भी बैंकर सोचिए, कोई भी पर्सन आपसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा एक सिंसियर और ऑनेस्ट एडवाइस है कि आप अपने डीपीआर पे अच्छे से काम करें, रेवेन्यू मॉडल्स को अच्छे से बनाए, जो भी नेसेसरी परमिशंस ग्राउंड लेवल पे चाहिए, डीपीआईटी से एक जो स्टार्टअप को अप्रूवल चाहिए रहता है वो आपके पास हो। अगली एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान देनी चाहिए कि आप कैसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर काम करें। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा मतलब है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स एक 5-6 दोस्तों के द्वारा बनाई हुई एक टीम से स्टार्ट कर लेते हैं, पर इसे एक फॉर्मुलाइज रूप नहीं देते, एक फॉर्मुलाइज तरीके से नहीं बनाते। एक स्टार्टअप के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में बना, और मैं इसके लिए एडवाइस करता हूं कि आप जनरली कंपनीज के फॉर्म पे रहे। कंपनीज में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आजकल, 1 पर्सन कंपनी भी बनती है, स्मॉल कंपनीज भी बनती है और एलएलपी भी बनती है। इस पे ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप सोचिए कि जब भी कोई इन्वेस्टर्स आपके पास आते हैं या कोई लोग आप दूसरे तरीके से फंड लेस करना चाहते हैं, बैंक से नहीं मिलेगा आपको आसानी से, ये बात तो तय है। पर अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स आपके पास आए, नए लोग आपके साथ जुड़े, इनफैक्ट एम्प्लॉइज को भी आपको शेयर होल्डर बनाना पड़ता है नए नए स्टार्टअप्स में, तो आप एम्प्लॉइज को शेयर होल्डर बना सकते हैं। कुछ लोग जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने को तैयार है, आप उनको शेयर होल्डर बना सकते हैं, और वो तभी संभव हो पाएगा जब आपके पास एक प्रॉपर कंपनी या एक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, एक स्ट्रक्चर रहेगा, जो आपको कंपनीज या कॉर्पोरेट स्टेट में ही मिल पाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप कंपनीज के फॉर्म पर या एलएलपी के फॉर्म पर ही आप उसमें जाए। अगर मैं क्रेडिट फैसिलिटी की बात करूं तो बैंक एक बहुत रूटीन तरीका है, पर बैंक में मैंने बताया आपको ये प्रॉब्लम्स आती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज और स्कीम्स है जिसका आप फायदा ले सकते हैं। जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम है जो बैंक्स में प्रिवेल करती है, जिसे हम सीजीएमएसटी स्कीम भी कहते हैं, जो एमएसएमईज के लिए आती है। 2 करोड़ रुपए तक के लोन आपको गारंटी फ्री मिलते हैं, जिसमें सरकार आपकी गारंटी लेती है। आपका एक वाइबल प्रोजेक्ट होना चाहिए, दिखना चाहिए, आपको 2 करोड़ के लोन बैंक सैंक्शन कर सकती है बिना किसी सिक्योरिटी के और बिना किसी गारंटी के, आपकी गारंटी सरकार लेती है। इसके अलावा स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया नाम के लोन फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं आपको बैंक्स में नहीं भी जाना है आपको, तो आपके पास सिडबी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। आप कोशिश करें कि आप डायरेक्टली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से डील करने की कोशिश करें जो डायरेक्टली फंडिंग्स देने का काम करती है।
जैसे मैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी जिसका नाम है, ऐसी बहुत सारी डायरेक्ट स्कीम्स चलाती है जिससे एंटरप्रेन्योर्स को डायरेक्टली लोन मिलता है, जो कि बहुत ही हाईली बेनिफिशियल रहता है। वो स्कीम्स में उनके पास आप जाकर सर्च कर सकते हैं, उनके एलोकेटेड फंड्स रहते हैं जिसके तहत आप जाकर लोन ले सकते हैं। अगर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो आप नाबार्ड्स में अप्रोच कर सकते हैं, वहां से जाकर आप लोन ले सकते हैं। इनफैक्ट भारत सरकार की एक 59 मिनट्स की स्कीम आई थी जिसमें अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीएसटी के ट्रांजेक्शन आपके 6 महीने से रिलेटेड हो रहे हैं, तो आप जीएसटी पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। पर मैं जो स्पेशली आपको बताना चाहूंगा कि इन सारी स्कीम पर भी आप को शायद ग्राउंड लेवल पे फंडिंग की दिक्कत आए। तो आजकल के नए मॉडर्न मेथड्स क्या है जिससे आप फंडिंग इकट्ठा कर सकते हैं? सबसे पहले आप किसी एक स्पेशलाइज एजेंसी से जुड़ सकते हैं, कंसल्टिंग कंपनी से जुड़ सकते हैं, जो कि आज के जमाने में स्पेशली काम ही यही करते हैं, जो कि स्टार्टअप्स के लिए नए नए फेयर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टार्टअप्स के लिए बूट कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों लेवल के इन्वेस्टर्स का मीट होता है। आपको एक प्रेजेंटेबल फिजिबल फॉर्म में प्रेजेंटेशन देना होता है, वो लोग एक नॉमिनल सी फीस लेते हैं। आप उस बूट कैंप्स में पार्टिसिपेट करिए, अपने आइडियाज शेयर करिए और आप अपने प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग बताइए, रेवेन्यू मॉडल्स प्रेजेंट करिए। और वहां ना बहुत सारे अलग अलग इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग आते हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको छोटे छोटे अमाउंट की फंडिंग दे सकते हैं, और ऐसा कर कर एक कंजोर्टियम ऑफ फंडिंग्स भी अरेंज हो सकता है। इसके अलावा आज जो ऑनलाइन नेटवर्क में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है जिसको हम P2P लैंडिंग बोलते हैं, पीयर टू पीयर लैंडिंग, जो कि आरबीआई के द्वारा ऑथोराइज्ड एनबीएफसी है। अगर आपकी छोटी बड़ी नीड है तो आप क्या कर सकते हैं कि इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जाइए, आप अपने प्रोजेक्ट शेयर करिए। स्पेशलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहेंगे, आप उस पर अपने प्रोजेक्ट शेयर करिए, आप फंड कितना रेस कर रहे हैं, रेवेन्यू कितना रेस कर रहे हैं, वहां पर आप ये अपने आइडियाज को रखिए। और वहाँ छोटे छोटे मेरे जैसे लेंडर्स लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। आपको मान लीजिए 25 लाख का लोन चाहिए आपके प्रोजेक्ट के लिए, मेरे जैसे छोटे छोटे लोग वहां पर जुड़े रहते हैं जो अपना मिनिमम लाख रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए दे सकते हैं। तो क्या होता है, बैंक आपके पूरे 25 लाख को फंड करने में रिस्क महसूस करता है। पर मान लीजिए कि ऐसे छोटे छोटे बोरोवर्स है जो 5-10 हजार, 1 लाख रुपए तक के रिस्क ले सकते हैं, वो लोग मिलकर आपके फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे फंड को रूट कर सकते हैं। इसको आप P2P लैंडिंग बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है ऑनलाइन जो आपकी ये मदद कर सकते हैं। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंपेरेटिवली थोड़ा बैंक से ज्यादा रहता है, पर प्राइवेट लैंडिंग से कम रहता है। ये आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक लास्ट एडवाइस है आपके लिए कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते रहिए। स्टार्टअप इंडिया फंड्स, गवर्नमेंट का पोर्टल है, सिडबी है, और ऐसे एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म है, स्पेशलाइज एजेंसीज है, बूट कैंप्स है, फेयर्स है। उन पे आप अगर रेगुलरली विजिट करते रहेंगे, अपने आइडियाज को क्लियर रखेंगे, रेवेन्यू मॉडल्स अच्छे से फिट कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आपको एक ना एक दिन अच्छा इन्वेस्टर मिलेगा और आप अपने मंजिल पे कामयाब होंगे। इसी के साथ मैं अपना डिलिब्रेशन यही समाप्त करता हूँ। इससे पहले कि मैं वापस होस्ट को क्वेश्चन आंसर्स के लिए ट्रांसफर करूँ ये सेशन, मैं आज के सेशन के लिए JCI और BNI का तहे दिलों शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया आप सबसे बातचीत करने का। अवेलेबल समय में मैंने पूरी कोशिश की कि आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उससे रिलेटेड बता सकूं, GST चाहे स्टार्टअप्स के लोन से रिलेटेड हो। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर मुझे अभी आप ये सेशन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा नितिन जी का, मेरे बड़े भाई समान महावीर जी का, जिन्होंने आज मुझे इस सेशन पे बोलने का मौका दिया। महावीर जी जो खुद एक बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट है, GST पे बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं, वो उनके रहते मुझे उन्होंने आगे बढ़कर ये मौका दिया, बोलने का अवसर दिया, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। ओवर टू हिमांशु जी, प्लीज आप आगे की प्रोसीडिंग कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच रमन सर, आपका सेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत इंफॉर्मेटिव था और हमें वाकई में बहुत कुछ आपके सेशन से सीखने को मिला है। हमारा एक क्वेरी हमारे पास आ रही है संतोष कुमार जी से। संतोष कुमार जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया,
वेरी खुश। थैंक यू। ये सबसे पहले सर ये बहुत ही इनोवेटिव सेशन था। मैं जेसीआई से आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने इतना बेहतरीन सेशन लिया, और मैं तो सोचा था कि थोड़ी देर रहूंगा, मगर मेरा दिल नहीं किया और मैंने पूरी सेशन सुनी। मेरे दोस्तों ने भी इसको ज्वाइन किया, तो सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेशन करता हूँ सर। थैंक यू सर। मेरा न्यू फर्म है सक्षम वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस करके, जिसमें हम ट्रेड भी करते हैं, हम सामान बेचते हैं दुकानदारों को भी, और साथ साथ हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि कोई अगर घर में वाटर प्रूफिंग कराता है तो उसको हम लोग गुड्स के साथ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा क्वेरी है कि जीएसटी चूंकि मेरा लिया हुआ है, तो मुझे किन बातों का ध्यान देना चाहिए जब मैं गुड्स के साथ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, और उससे एक इंक्लूडिंग मनी, मतलब पैसा ले रहा है, मतलब 20,000 में मैं उनकी वाटर प्रूफिंग करके दूंगा, तो मुझे किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए उस समय में? सर, आपको ये ध्यान देना है कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, इसे हम कंपोजिट सर्विस कहते हैं, जहां पर आप सर्विस के साथ साथ गुड्स भी डील कर रहे हैं। आपको इसे लॉ में कंपोजिट सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। आप एक तरीके से किसी को पूरा एक वाटर प्रूफिंग कर देते हैं, और जिसमें आप कई सारे केमिकल्स वगैरह का आप उसे कंज्यूम कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो आप एक तरीके से उन्हें एक सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो सर्विस प्रोवाइड करने के दौरान आप उन मटेरियल्स का, गुड्स का उसमें कंजम्पशन कर लेते हैं। यस, करेक्ट सर। तो आपको अपने सर्विस का बिल उन्हें देना है, आपको किसी भी तरीके का गुड्स का बिल उनको देने की आवश्यकता नहीं है। आप वाटर प्रूफिंग सर्विस के नाम से उनको बिल रेज कर सकते हैं, जिसपे आपको अप्रोप्रिएटली टैक्स कलेक्ट करना है। आप वो जो गुड्स उसमें कंज्यूम करेंगे केमिकल्स वगैरह का, उसका आपको क्रेडिट भी मिल जाएगा। आप जो भी सर्विसेज और भी लेंगे उसका भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। सर, वो अपने अकाउंट में मैं अपने जो अकाउंटेंट उसको कैसे दिखाऊंगा कि मैंने 20,000 रुपए का सर्विस प्लस गुड्स दिया है? तो ब्रेकअप वो करेगा ना उस चीज को? सर, ऐसी जरूरत नहीं है, ऐसी आपको जरूरत नहीं है कि आपको उसको ब्रेकअप करके देना पड़े, क्योंकि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप या तो दो काम कर सकते थे कि आपने माल बेचा प्लस आपने सर्विस दी, या आप ऐसा बोले कि भैया मेरा काम है कि मैं सिर्फ आपको वाटर प्रूफिंग करके दूंगा इतने एरिया का, इतने स्क्वायर फीट के हिसाब से। आपका काम किस तरीके का होता है ये डील करेगा कि आपका अग्रीमेंट कैसा है। मान लीजिए आपने ये अग्रीमेंट किया कि भैया इतने स्क्वायर फीट का एरिया मैं वाटर प्रूफिंग करके दूंगा, आपसे इतने रुपए स्क्वायर फीट का चार्ज लूंगा। हाँ, यही रहता है सर, यही रहता है। तो फिर सर इसमें बताइए, आपने माल बेचा है, माना आपने माल कंज्यूम किया आपने सर्विस देने के लिए, तो इसलिए आपको माल की बिलिंग करने की जरूरत नहीं है। आपने माल कंज्यूम किया, उसकी एंट्री आपको अपने बुक्स में इंटरनली लेनी पड़ेगी। आप केवल जी सर, वो अमाउंट जो है 20,000 रुपए आएगा, तो मैं अपने जीएसटी वाले जो मेरा खाता है उसमें मैं 20,000 रुपए डालूंगा, ये 20,000 रुपया में आए। डाल सकता हूँ ना सर? वो बिल्कुल डाल सकते हैं आप, डाल सकता हूँ। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और किसी भी हमारे मेंबर्स को, पार्टिसिपेंट्स को कोई डाउट? कुछ लोगों ने शायद हाथ उठाया हुआ है, मुझे दिख रहे हैं, आप देखेंगे क्या? राइट सर। देवेंद्र विश्वकर्मा जी, आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे? सर नमस्कार। अभिषेक शर्मा। राइट जी नमस्कार सर, बताइए। सर मैं देवेंद्र विश्वकर्मा। हम लोग जैसे जिनके प्लॉट हैं उनमें हम लोग घर बना के देते हैं, उन लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं छोटे मोटे, या फिर कोई नया भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें जीएसटी का क्या लायबिलिटी रहता है और कैसे रहेगा सर? देखिए, बिल्डिंग बनाते हैं, मान लीजिए हम लोग कोई कॉलोनी का काम नहीं करते हैं, बिल्डर नहीं है हम लोग, परंतु हम लोग जैसे छोटे कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग जी, किसी का रिपेयरिंग है या किसी का फर्स्ट फ्लोर बनाना है या किसी का एक्सटेंशन करना है, उसमें जीएसटी का क्या हम लोग का जीएसटी नंबर तो लिया हुआ है, तो उसमें क्या रहेगा? आप जैसा मुझे आपकी बातों से समझ में आया कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर है जो प्राइवेटली रेसिडेंशियल सर्विसेज देते हैं। आप किसी का या तो घर बना कर देते हैं, या उसमें फर्स्ट फ्लोर बना देते हैं, या रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह का करा के देते हैं। तो ऐसे में ना देखिए, ये काम दो तरीके से करना संभव है। आप या तो पूरे मटेरियल के साथ काम लेते होंगे, या आप केवल और केवल सिर्फ सर्विसेज देते होंगे, मटेरियल वो उनके तरफ से आता होगा। नहीं सर, मटेरियल के साथ ही करते हैं। अच्छा, मटेरियल के साथ करते हैं। तो इसमें ना ऐसा नियम है कि अगर आप प्योर लेबर सर्विस का काम देते हैं इंडिविजुअल रेसिडेंशियल के लिए प्योर सर्विस, तो ऐसे केसेस को ना जीएसटी में से छूट दी गई है कि आपको उस पर टैक्स पटाने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप
मटेरियल समेत एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। देखिए, एक होता है प्योर लेबर सर्विस और दूसरा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि आप मटेरियल भी साथ में लेते हैं, मटेरियल को भी बेनिफिट लेते हैं। तो अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसी सर्विसेज जो है वो टैक्सेबल है, उस पर आपको टैक्स चार्ज करना पड़ता है। इसमें ना दो तरीके के स्कीम चलते हैं। अगर आप एफोर्डेबल हाउसिंग को सर्विस देते हैं या किसी आजकल जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर आप वो घर बनाकर देते हैं तो उस पर कंसेशनल रेट से टैक्स लगता है, जो कि 12% है। और अगर आप नॉर्मल किसी कंस्ट्रक्ट रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या किसी को घर बनाकर देते हैं तो वो 18% टैक्सेबल है, 18% के हिसाब से टैक्सेबल है। ऐसे में आप जो भी मटेरियल लेंगे जैसे सीमेंट, रेती, गिट्टी, अगर आप बिल रहेगा आपके पास, आपने उस पर जीएसटी पे किया होगा तो उस पर आपको क्रेडिट की छूट मिल जाएगी। और आप 18% का जो आप चार्ज कर, आप ना अपने सामने जिनका आप मकान बनाएंगे उनको आप चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, उनको चार्ज करना पड़ेगा मतलब 18%? हाँ, आपको चार्ज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जेब से देना पड़ जाएगा नहीं तो जनरली। या आप अपनी प्राइसिंग ही ऐसे रखें कि उस पर जीएसटी इंक्लूड रहे, या अपने कॉन्ट्रैक्ट को आप इस तरीके से बना सकते हैं कि आप प्योर लेबर कर ले, उनको बोलिए कि मटेरियल वो डंप करें। ठीक सर। कुछ ऐसा आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी जिससे आपको भी फायदा हो और उनको भी फायदा हो, इस तरीके से। तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए मैं प्योर लेबर रेट के बिल बनाता हूँ तो जी। उस कंडीशन में जो मैं मटेरियल का इनपुट ले रहा हूँ, जो मटेरियल खरीद रहा हूँ, आप अभी बोल रहे हैं कि मैं प्योर लेबर हो जाऊंगा जी, तो मटेरियल आप लेंगे ही नहीं। ठीक। और अगर आप मटेरियल लेंगे भी तो वो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपका। वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जी, ठीक है, थैंक यू। जी, जी। थैंक यू सो मच सर। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम ऑल्सो और बहुत जल्दी हमें आगे भी बढ़ना है। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन एक अभिषेक शर्मा जी का है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल प्रिसाइजली वो क्वेश्चन पूछें। और रमन सर प्लीज। हेलो सर। हाय अभिषेक जी। इंफॉर्मेशन बहुत हमें काम आएगी, बट इसमें हम लोग का जो प्रोडक्शन है, हम कॉटन सीड का प्रोडक्शन करते हैं। कॉटन सीड चलाते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उससे ऑयल निकालते हैं और उसके कॉटन केक निकलता है जी। कॉटन ऑयल में 5% की जीएसटी है इसमें, कॉटन ऑयल में जी। जो ऑयल बनाते हैं उसका, और सीड में भी 5% की हमको जीएसटी लगती है जी। बट हमको कॉटन केक में जीएसटी नहीं मिलती है। जी। तो जो वो हमको एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आती है फॉर कवरिंग ऑफ इनपुट, जो हम इनपुट कवर करते हैं, तो उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उस कॉस्ट को कैसे हम उसको रिकवर कर सकते हैं, उस पर अगर आप कुछ ब्रीफ करें तो हमें हेल्प होगी। अभिषेक जी, मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा, मैं आपसे आइडिया ले रहा हूँ। आप जो कॉटन केक है वो कह रहे हैं वो टैक्सेबल कैटेगरी में नहीं आता है, नहीं, वो टैक्सेबल में नहीं है, वो एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आता है। और इसलिए जो कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपको उसका दिक्कत जाती है, आपको उसको रिवर्स करना पड़ता है आपको, ऐसा आपका कहना है? हाँ। अभिषेक जी, इसमें ना देखिए, लॉ बिल्कुल बहुत क्लियर है कि अगर मैं किसी एग्जेम्प्ट चीज में डील कर रहा हूँ जिसपे मुझे आगे टैक्स ही पे नहीं करना है, तो वो कहते हैं कि उस एक्सटेंट के ट्रांजेक्शन तक का तो आपको उस एक्सटेंट के ट्रांजेक्शन को तो आपको क्या करना पड़ेगा, उतना अगर जो आपका कॉमन क्रेडिट है उतना तो आपको रिवर्स करना ही पड़ेगा। ये तो लॉ ने एक नियम बनाया जिसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते और अपने को इसको पालन करना ही पड़ेगा। ये हो सकता है कि अगर आपका कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें अगर ये करना संभव हो, जो मुझे नहीं लगता शायद आपके व्यापार में करना संभव होगा, कि हम टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट कैटेगरी के बिजनेस को अलग अलग कर लें, क्योंकि आपका तो मैन्युफैक्चरिंग है तो आप नहीं कर पाएंगे शायद। लेकिन जनरली हमारे कुछ ऐसे भाई बंधु रहते हैं जो ट्रेडर्स कैटेगरी में रहते हैं ना, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि सर आप एक काम करिए, आप पूरे एग्जेम्प्ट कैटेगरी के गुड्स को अलग कर लीजिए और पूरे टैक्सेबल कैटेगरी के गुड्स को अलग अलग करके दो अलग अलग फर्म बना लीजिए। नहीं, वो नहीं कर सकते। वो करना आपके केस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि आप एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। करेक्ट। तो इसलिए एडवाइजेबल ये है सर। इसके और कोई ऑप्शंस नहीं है सर जो उसके वे में हम उसको कवर कर सकें? अभिषेक जी, मैं आपको इसी पॉइंट पे आ रहा था कि आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि आपका किसी भी तरीके से कोई नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर किसी चीज का कोई क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है तो इसका मतलब वो आपके खर्चे में जाकर ऐड हो जाता है। हाँ जी।
तो आपको अगर जीएसटी में बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो आप ये समझिए कि वो आपका बेनिफिट आपको इनकम टैक्स में ऐसे खर्चे के तौर पर मिल रहा है। वैसे ही आपका अगर वो फिक्स्ड एसेट्स है तो आपको डेप्रिसिएशन के तौर पे देता है। तो कई बार हमें अपने अंदर से ऐसा लगते रहता है कि अरे यार ये मेरा नुकसान हो रहा है, ये मेरा माइनस हो रहा है, पर ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। जैसे उदाहरण के तौर पर कि भाई 1 लाख का अगर प्रोडक्ट है 18% जिसमें जीएसटी है, 1,18,000 रुपए आपने पे किया और आपको 18,000 के क्रेडिट के बदले आपको केवल मान लीजिए 5,000 का क्रेडिट अवेलेबल हो रहा है, तो 13,000 रुपए जाकर आपकी परचेज में ऐड होगा और वो परचेज 1,13,000 की आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी पूरी 1,13,000 की, जो आपको पहले 1 लाख की मिलती अगर आपको आईटीसी नहीं मिल रहा। तो इसलिए आपका नुकसान नहीं होगा, आप ये निश्चिंत रहिए। बस ये होगा कि आईटीसी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच सर। आई होप सो सभी की क्वेरीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी और हम बाद में भी रमन सर से बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और अब सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट आज के हमारे स्पेशल गेस्ट और चेयरमैन सीए एसोसिएशन भिलाई श्री अमित भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमें अपना संबोधन दें। और सर बहुत अमित सर हमारे साथ जुड़े हुए और अपना कीमती समय आपने हमें दिया और प्लीज सर। थैंक यू हिमांशु जी। I thank JCI and BNI for inviting me in this program as a special guest. President JCI Durg Bhilai, JC Vivek